પ્રોગ્રામની ઇન્ફોર્મેશન માટે જ આજે બોલાવ્યા છે. તો મીટિંગની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં મારી દરેક લોકોને એક વિનંતી રહેશે કે આજે આપણે દરેક લોકો એક અવાજ આવી રહી છે? અગેન સોરી ટુ ડિસ્ટર્બ. યસ યસ યસ. તો આજના આ પ્રોગ્રામની અંદર આપણે સૌ આવ્યા છીએ તો ડિજિટલ મીટિંગ આપણે એટેન્ડ કરી રહ્યા છીએ. તો દરેક લોકોને એક ખાસ રિક્વેસ્ટ રહેશે કે પોસિબલ હોય, નેટવર્ક ઇસ્યુ ના હોય ત્યાર સુધી આપણે દરેક લોકો આપણા કેમેરાને ઓન રાખીશું. એક પ્રોપર જગ્યાએ આપણે લોકો આપણું સિટિંગ એરેન્જમેન્ટ કરીશું. ફરતા ફરતા કામ કરતા કરતા નહીં સાંભળીએ, કારણ કે આજે તમને જે પણ માહિતી મળવાની છે એ આપ સૌ માટે ખૂબ જ અગત્યની છે. અને પ્રોગ્રામની ટેગલાઇન દરેક લોકોને ખબર છે કે આજનો આ પ્રોગ્રામ હેલ્થ કેર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ છે, બરાબર ને? તો સૂતા સૂતા સ્પેશિયલી આપણે નહીં સાંભળીએ આ મીટિંગ, કારણ કે એનાથી જ ખબર પડશે કે તમારી હેલ્થ કેટલી સારી છે કે તમે બેઠા બેઠા સાંભળી શકો છો. તો ઘણા બધા લોકો સૂતા છે. ટાઈમ 9 વાગ્યાનો છે. હા, ગ્રામ્ય વિસ્તારથી હશે ત્યાં 9 વાગે મતલબ કે સુવાનો સમય થતો હોય છે. પણ આપણી આ મીટિંગની અંદર આપણે કોઈ લોકો સૂતા સૂતા નહીં સાંભળીએ. આપણે થોડું એનું પાલન કરીશું. તો દરેક લોકો પોતાની જગ્યાએ એક વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાઈ જાય અને આ મીટિંગની શરૂઆત આપણે કરી દઈએ છીએ, કારણ કે 9 વાગી ગયા છે. તો ગુડ ઇવનિંગ નેટસફ. અગેન આજના આ હેલ્થ કેર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામમાં આપ સૌનું હું યોગેશ બારોટ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આશા રાખું છું કે આપ સૌ સ્વસ્થ હશો, કેમ કે આપણી સાથે નેટસફની ધ બેસ્ટ, વર્લ્ડ બેસ્ટ કહી શકાય એવી હેલ્થ કેર પ્રોડક્ટ છે. એટલે આપણે દરેક લોકો સ્વસ્થ જ હોઈશું. જે નેટસફ આપણને છેલ્લા 18 વર્ષથી બનાવીને આ હેલ્થ કેરની પ્રોડક્ટ આપી રહી છે. અને આજે આપણે એ જ રેન્જ વિશે આજે આ જાણવા માટે અહીંયા ભેગા થયા છીએ, કેમ કે આજના આ જમાનામાં હેલ્થ એ સૌથી મોસ્ટ વેલ્યુએબલ થિંગ્સ છે. આપ સૌ જાણો છો કે આજે હેલ્થ એ કેટલી વેલ્યુએબલ થિંગ્સ બની ચૂકી છે. અને એ વેલ્યુએબલ બની કેમ? કારણ કે અત્યાર સુધી લોકોને હેલ્થ બાબતે વેલ્યુ જ નહોતી. અને સ્પેશિયલી ઇન્ડિયાના લોકો, સોરી હું પણ ભારતીય છું, આવું બોલતા મને થોડું દુઃખ થઈ રહ્યું છે, પણ આપણા ભારતીય લોકોને ક્યારે પોતાની હેલ્થ બાબતે આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરતા જોયા નથી. મતલબ કે જે પણ આવે એવી રીતે જીવન જીવતા હોઈએ છીએ, ખાતા હોઈએ છીએ, પીતા હોઈએ છીએ, મજાની લાઈફ. આપણે ઘણા બધા મૂવીમાં ડાયલોગ પણ સાંભળ્યો છે, ખાવાનું પીવાનું ને મજાની લાઈફ. ક્યારેય હેલ્થ વિશે આપણે લોકોએ ફોકસ કર્યું નથી. પરંતુ આજે તમે જોઈ રહ્યા છો કે હેલ્થ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એટલા માટે જ કહેવાય છે કે હેલ્થ ઇઝ નોટ વેલ્યુડ ટીલ સિકનેસ કમ્સ. મતલબ જ્યાર સુધી તમને બીમારી ના આવે ત્યાર સુધી તમને તમારી હેલ્થની વેલ્યુ થતી નથી. આજે એક એવી મોટી બીમારી જેને આખા વિશ્વને ભરડામાં લઈ લીધા છે. આપ સૌને ખબર છે કે લાસ્ટ મતલબ માર્ચ મહિનાથી આપણે છેલ્લા અરાઉન્ડ 13 મહિનાથી આપણે આ બીમારીનો સામનો ભારતની અંદર કરી રહ્યા છે, આખું વિશ્વ કરી રહ્યું છે. અને ત્યારે લોકોને સાચી હેલ્થ, સારી હેલ્થ કેવી હોવી જોઈએ, શા માટે હોવી જોઈએ અને એની માટે આપણે શું પગલાં ભરવા જોઈએ, એ લોકો આજે એની માટે ઝઝૂમી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી લોકો પૈસા પાછળ ભાગતા હતા, પરંતુ આજે હું જોઈ રહ્યો છું કે ઘણા સમયથી લોકો આજે પોતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું કેવી રીતે રહી શકે એની પાછળ ભાગે છે. તો આજે નેટસફ એટલી જબરદસ્ત રેન્જ તૈયાર કરી છે કે આજે આ મોટી મહામારી પણ જે આવી છે એની સામે પણ આપણે આપણા સ્વાસ્થ્યને સુરક્ષિત રાખી શકીએ છીએ. આપણે એવી બીમારીઓનો સામનો પણ કરી શકીએ છીએ. તો એવી જબરદસ્ત આપણી હેલ્થ કેર રેન્જ જે નેટસફે તૈયાર કરી છે, તો એની માટે વધારે સમય નહીં લઉં, પણ એની માટે આપણી સામે જે આપણા નેટસફના પ્રોડક્ટ ટ્રેનર મિસ્ટર અદીપ શર્મા સર, જે આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને આજે આપણને દરેક લોકોને નેટસફની આ હેલ્થ કેર રેન્જ વિશે પ્રોડક્ટની માહિતી આપવાના છે. તો અગેન રિક્વેસ્ટિંગ ટુ યુ ઓલ
કે દરેક લોકો શાંતિથી આ મીટિંગને સાંભળે, એક જગ્યાએ સ્થિર થઈને સાંભળે, કારણ કે આજે આ હેલ્થને સારી રાખવી માત્ર આપણા પૂરતું નહીં, પરંતુ આપણા પરિવાર, આપણા સમાજ અને આ વિશ્વના દરેક લોકો માટે જરૂરી છે, જેના આપણે સહભાગી થઈશું આવનારા સમયમાં આ હેલ્થ પ્રોડક્ટના માધ્યમથી. તો વધારે समय नहीं लेता, यहाँ पे हमारे बीच में मिस्टर अदीप शर्मा सर उपलब्ध है दिल्ली से, तो अदीप शर्मा सर को मैं वेलकम करूंगा। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम उनका जबरदस्त तालियों से वेलकम करेंगे और अदीप शर्मा सर को कहूंगा कि आज हमारे बीच में गुजरात के अलग अलग शहर गांव से लोग आए हुए हैं, तो उन्हें हमारे हेल्थ के रेंज के बारे में बताएं, ताकि वो भी सुरक्षित रहे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे, उनका समाज भी सुरक्षित रहे और आने वाले भारत में हम बहुत सारे लोगों की अच्छी हेल्थ कैसे बना पाए हमारी रेंज के माध्यम से। तो प्लीज मिस्टर अदीप शर्मा, ओवर टू यू एंड कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच योगेश सर, थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है गुजरात में, तो बार बार आके गुजरात की टीम से मिलके मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड इवन आई फील मोर एक्साइटेड कि मतलब कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, किसी भी तरह का सेशन लेना है। पहले तो समस्त गुजरातियों को अदीप शर्मा का नमस्कार। हमें केम छो एवरीवन। और डेफिनेटली हम लोग मिल तो पा नहीं रहे, ऑफलाइन मोड से हम लोग आपस में तो मिल नहीं पाएंगे, बट डेफिनेटली ऑनलाइन मोड के ज़रिए हम लोग आज एक ज़बरदस्त सेशन हम लोग डेफिनेटली एक लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ अगेन, सो आई एम थैंकफुल टू योगेश सर, पराग सर, जिन्होंने मुझे इस सेशन के लिए बुलाया है, और जो आने वाला नेटसफ का जो ज़बरदस्त फ्यूचर है और फ्यूचर के करोड़पति लीडर्स के साथ मुझे इस सेशन के लिए इनवाइट किया है, और मुझे भी अच्छा मौका मिला है कि ये सारा जो नॉलेज है, ये जो अच्छी बातें हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके हम अपने बिजनेस में अपने बिजनेस को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा, एंड अगर आपको स्क्रीन दिख पा रही है तो मुझे थम्स अप जरूर दें। ग्रेट सर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, सर ने इतने सारी बातें बोली हैं, थोड़ा गुजराती में बोला था, मुझे बहुत सारी चीज़ समझ में आई भी नहीं है, बट डेफिनेटली सर इन मुद्दों पे आई थिंक एक अवेयरनेस रेज करने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों हेल्थ केयर और इससे जुड़ी बातों को लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करेक्ट, आई मीन इन्हीं सारी चीज़ों को लेके बात हो रही थी, और कैसे आने वाला फ्यूचर हेल्थ केयर को लेके डिज़ाइन हो रहा है। तो ये डेफिनेटली सर बहुत ही मुद्दों पे सही थे, और आने वाला जो फ्यूचर है, इनफैक्ट ये हेल्थ केयर को लेके एक बहुत ही ज़बरदस्त ये मार्केट है, और एक अच्छा फ्यूचर लोगों को लेकर ये प्रेजेंट करने वाला है। ये अभी हेल्थ केयर के बारे में बात करने से पहले हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आज जो हम सेशन ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसका मकसद एक्चुअली है क्या। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे मैनेजर्स ने, हमारे जोनल मैनेजर्स ने हमें इनवाइट किया है तो सिर्फ हम वो सेशन लेने आए हैं। आपको खुद समझना पड़ेगा, और स्पेशली हमारे बीच में 800 पार्टिसिपेंट्स हैं, और इनकी तादाद बढ़ती हुई जा रही है। तो डेफिनेटली मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये जो 800 लोग जो हैं, अभी पूरे रीजन में सिर्फ और सिर्फ 800 लोग ज्वाइन किए हैं। तो डेफिनेटली आप वो लोग हैं जिन्होंने अपने शेड्यूल में से कीमती समय को निकाल के अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो डेफिनेटली आप वो लोग हैं जो अपने करियर को लेके सीरियस हैं, अपने लाइफ को लेके सीरियस है दोस्तों। तो सबसे पहले तो और सबसे ज़बरदस्त तालियां तो आपके लिए होनी चाहिए मेरी तरफ से, कि आप लोग खुद अपनी लाइफ को लेके अवेयर हैं। और यही चीज़ है दोस्तों, यही हम समाज में भी देखते आ रहे हैं दोस्तों, कि पूरे समाज में सभी के सभी लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो उस समय को, समाज को, उस देश को बदलने की ताकत रखते हैं दोस्तों। और मैं ज़बरदस्त तरीके से देख पा रहा हूँ कि वो जज्बा, वो जुनून, वो आप लोगों में है, ये इन 800 लोगों में है दोस्तों। तो डेफिनेटली आज का जो सेशन है, हम लोग
ऐसी पेचीदगी भरी बातों के साथ हम लोग करने वाले हैं, उन अहम मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपके बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करेंगे दोस्तों, करेक्ट। तो ये उस हेल्थ केयर के बारे में ये सारा सेशन जो हम चालू करेंगे, उससे पहले कुछ तथ्यों, कुछ फैक्ट्स पे मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसने 2018 और 19 में 18,000 करोड़ का बिजनेस किया, ये टर्नओवर आया दोस्तों। और ये हर साल 13% के ग्रोथ के साथ ये डेवलप होते जा रहा है, जिसमें अभी तक 50% जो वॉल्यूम है बिजनेस का, ये वेलनेस प्रोडक्ट्स के तहत ही आ पाता है दोस्तों। मतलब आप सोचिए 50% का जो बिजनेस है ये अकेला हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स ये खींच लेता है। और अगेन इसमें सबसे अच्छी बात क्या रहती है दोस्तों कि 53% जो डायरेक्ट सेलर्स का जो रेशियो है वो वुमेन्स का आता है दोस्तों। तो क्यों ना हो, क्यों ना जो हमारे बीच की जो अस्मिताएं भी हैं, ये उनके लिए भी सोचने की बात है कि इतना बड़ा जो रेशियो है, इतनी बड़ी जो मार्केट जो खाली है, वो आपका इंतजार कर रही है फ्रेंड्स। तो अभी ये वुमेन्स का जो रोल क्यों है, ये तो खुद ब खुद ये बोलने की बात ही नहीं है, आपको भी पता होगा कि इनफैक्ट हर घर में जो हेल्थ केयर का जिम्मा उठाने वाली एक नारी ही होती है दोस्तों। चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी मदर हो, आप चाहे किसी भी उम्र में हो या आप कितने भी बड़े आदमी बन जाए, आपका दोस्त आपको जरूर कॉल करेगा कि कैसा चल रहा है, तेरा काम कैसा चल रहा है। पापा जरूर आपको कॉल करेंगे कि सब कुछ ठीक है, पैसा आ रहा है अच्छे से। बट सिर्फ और सिर्फ वो माँ ही होती है, वो वाइफ ही होती हैं जो आपको कॉल करके पूछती हैं कि बेटा खाना खाया या आपने खाना खाया। तो ये हमारा ये समाज पुराने समय से ही एक जो महिलाएं हैं वो हेल्थ केयर को लेके काफी जागरूक रही हैं। तो डेफिनेटली वो डिजर्व भी करती हैं कि 53%, और क्या आने वाला टाइम तो डेफिनेटली ये रेशियो को और ज्यादा कवर अप करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्यों ये फैक्ट्स बताना चाह रहा था फ्रेंड्स, कि हर घर में भी, इनफैक्ट हर घर में, चाहे आप लोग नेटसर्फ में बिजनेस करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कुछ लोग हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर भी ऐड करते हैं डेफिनेटली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मार्केट को थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस को बढ़ा सकता हूँ, वो कौन ऐसे लोग हैं जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जा सकता है। तो वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है दोस्तों। और ये चीज़ कहीं छुपी हुई नहीं है। अगर आप हर घर में देखें, हर एक पर्सन अपने घर के लिए हर महीने 3-4 हज़ार, 5,000, 6,000 का प्रोडक्ट्स लेकर आता है। वो किस कैटेगरी का होता है? हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पर्सनल केयर होते हैं, होम केयर होते हैं, एंड कुछ मायनों में ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स भी होते हैं दोस्तों। तो अभी देखने की बात यह है कि ब्यूटी केयर के नाम पे लिपस्टिक आ जाता है, जो हम आपकी वाइफ हो गई या जो बेटियां हो गई, वर्किंग वुमेन हो गई, लिपस्टिक हो गया, मस्कारा हो गया। पर्सनल केयर के नाम पे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और शैम्पू हो गया, ये सारी चीज़ें तो आ जाती है दोस्तों। बट हेल्थ केयर के मामले में वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपके घर में आते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आप पूछेंगे मार्केट में जाके, लोगों के साथ में, जहाँ पे आपको अपना मार्केट डेवलप करना है, आपको अपना बिजनेस को डेवलप करना है, आपको अवेयरनेस बढ़ानी है लोगों के बीच में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स को लेके दोस्तों। और ये जो प्रोडक्ट रेंज है दोस्तों, ये हर कोई यूज करता है, और ये आज की डेट में ज़रूरी नहीं, मजबूरी हो गई है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह का खाना आपके प्लेट में आ रहा है, वो केमिकल्स, वो फर्टिलाइजर्स वाला जो हैवी केमिकल्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो उससे भरे हुए जो खाने आपके प्लेट में आते हैं, वो हमारे जो बॉडी में जाता है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इनफैक्ट हमारी सेहत क्या, हमारे आने वाली जनरेशन के सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए आज की डेट में ये हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें एक अच्छी क्वालिटी का डाइटरी सप्लीमेंट या डेली न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट हमें अपने डाइट में ऐड करना पड़ता है। और अगर हम नेटसर्फ की बात करते हैं दोस्तों, कि नेटसर्फ में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स
कैसे रहे या उनकी क्या क्वालिटी रही है, तो हम कुछ एक नज़र डालते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि 2019 और 20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, जैसे अपने 400 प्लस करोड़ का टर्नओवर अचीव किया, ये बिजनेस अचीव किया दोस्तों। ये जो विजन था, ये जो सपना था, ये जो जज्बा था नेटसर्फ का 20 साल पहले से ही, जहाँ पे लोग हेल्थ को लेके बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, बट नेटसर्फ ने समझा कि आने वाले टाइम ऑर्गेनिक फार्मिंग का, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स को लेके एक बहुत ही अच्छा मार्केट हो सकता है। और इसी के ज़रिए हम सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों को करियर हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। ये लोगों ने भी समझा, इस सपने को, इस जज्बे को आपने समझा, और इसी को आप लोग फ्यूचर की तरफ बढ़ाते हुए आ रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो जो नेटसर्फ के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा कंज्यूमर्स ने ट्रस्ट के साथ में यूज़ किया हुआ है। नेटसर्फ ने अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो कि 60 प्लस प्रोडक्ट्स की रेंज है, वो 20 सालों से समाज के कल्याण में लगाए हुए हैं, और इस सपने को आपने जगा के रखा है दोस्तों। और इसी कड़ी में नेटसर्फ ने न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इजाद किया दोस्तों। और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्चुअली में होते क्या हैं दोस्तों? ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये कोई नया साइंस नहीं है दोस्तों। ये एक बहुत ही पुराना साइंस है, जो कि आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते आ रहे हैं दोस्तों। अभी आप खुद से एक सवाल पूछिए, जब भी कभी बारिश हो रही होती है, या इनफैक्ट कभी सर दर्द हो रहा होता है, जुकाम हो जाता है, या बदन दर्द कर रहा होता है, तो आप घर जाते हैं, अपनी वाइफ को या अपनी मदर को या अपने हस्बैंड को आप बोलते होंगे कि मतलब मेरे को दवाई नहीं चाहिए, मेरे को जस्ट एक अच्छी अदरक इलायची डाल के एक मेरे को चाय दे दो, करेक्ट। और वो चाय पीने के बाद आपको एक बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है, आपका सर दर्द गायब हो जाता है, आपको काफ़ी, आपका जो बॉडी पेन है वो दूर चला जाता है, विदाउट एनी मेडिसिन। ये क्या है दोस्तों? दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये पावर होती है न्यूट्रास्यूटिकल्स की। इट मीन्स हम हमारे खाने को ही, हमारे कुछ टेम्पररी एलिमेंट्स, जो कि हमको कुछ तकलीफ हो रही होती है, हम खाने को ही बदलाव करके उसको अगर ट्रीट करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, तो दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल्स फ्रेंड्स। ओके, जिसका इस्तेमाल सैकड़ों सालों से हम लोग अपने घरों में यूज करते हुए आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में नेटसर्फ ने अपने प्रोडक्ट्स को, नेचुरमोर को इसी आयाम में एक दर्जा दिया, हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स को इसी तौर पे डिज़ाइन किया और आपके लिए प्रस्तुत किया दोस्तों। अभी नेचुरमोर एक्चुअली में है क्या दोस्तों? ये एक ऐसा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो कि सारे एसेंशियल हर्ब्स एंड वाइटल माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपने में समाये हुए हैं, जो कि आपकी हेल्थ को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप खुद से पूछिए, आप कहते थे कि हमारे जो बाप दादा हैं वो 100 साल तक जी जाते थे, 90-100 उसको भी क्रॉस कर जाते थे, उनका खाना इतना अच्छा होता था, करेक्ट। ये आप सब लोग आपस में बात करते हैं, बट आज की डेट में यही सेम चीज़ आप लोग अपने पे अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि जो आप लोगों का जो खाना है, हम लोगों का जो खाना है, वो उस लेवल का नहीं है, उस उच्चतम गुणवत्ता वाला नहीं है जो कि पुराने समय में आपके बाप दादाओं लिया करते थे अपने समय में। आप एक एग्जाम्पल लीजिए उस आटे से ही, जिसकी आप रोटी रोज खाते हैं दोस्तों। आप उसको चक्की से लेके आते हैं, या किसी भी ब्रांड का आशीर्वाद हो या डिफरेंट पिल्सबरी का आप आटा लेके आते हैं, वो इतना महीन पिसा होता है कि उसमें कुछ जो भी मल्टी ग्रेन्स होते हैं, जो उच्चतम क्वालिटी के ग्रेन्स होते हैं, वो तो उसमें होते ही नहीं है। वो तो मतलब गाय भैंसों को डाल दिया जाता है चक्कियों में, ऑब्वियसली ना। जो उसमें ब्रांड होते हैं, बार्ली या डिफरेंट किसी भी तरह का जो भी आप ग्रेन का आप आटा लेते हैं, उसको इतना महीन बना दिया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रोटी बनने के लिए लायक ले जाता है। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसमें जो फाइबर होता है, वो हम लोग लेकर ही नहीं आते हैं अपने घर में। और यही चीजें हमारे डिफरेंट तरह तरह के खाने, ऑयल्स में हो गया, या अलग तरह के फल सब्जियों में भी हमें ये चीजें देखने को मिलती है। इसीलिए जो मैंने आपको बोला है कि ये जरूरी नहीं, ये हमारी मजबूरी हो गई है कि हमें एक उच्चतम क्वालिटी का डाइटरी सप्लीमेंट अपनी डाइट में हमें ऐड करना पड़ता है दोस्तों। अब नेचुरमोर क्यों बेस्ट होता है, क्यों? ये
मार्केट के प्रोडक्ट से अलग है और एकदम किफ़ायती है और बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं जब आप ये बिजनेस करते हैं, आप ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं दोस्तों, ये प्रोडक्ट कोई भी परचेज करता है, कोई भी कंज्यूम करता है, तो उससे उसको रिजल्ट मिलता है। हम लोग इसे दवाई की तरह नहीं सेल करते हैं, हम लोग इसको डाइटरी सप्लीमेंट की तरह सेल करते हैं, डेली न्यूट्रिशन के तौर पे सेल करते हैं। स्टिल ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शो करता है बॉडी में, उससे कंज्यूमर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। बार बार वो इसे एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप ये प्रोडक्ट उनको दें, तो इससे आपकी ब्रांडिंग होती है दोस्तों। और दूसरा, कोई भी पर्सन अगर एक्स्ट्रा अपना पैसा कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स पे दे रहा है तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता है कि वो हर्बल हो, नेचुरल हो और हमारी बॉडी में अच्छा बेनिफिट दे, जो कि हमारा नेचुरोमोर, हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हमारे कंज्यूमर्स को देते हैं, आपको देते हैं, हमको देते हैं। और डेफिनेटली जो एक प्रोडक्ट होना चाहिए वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए 4 बार सोचना पड़ता हो, सेविंग करना पड़ता हो। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि आप अपने घर के जब बाहर जाएं तो एक चाहे ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी हो, अगर वो अपने हेल्थ को लेके कंसर्न है तो डेफिनेटली उसके लिए एक ईजी ऑप्शन होता है कि नेचुरोमोर या डिफरेंट डाइटरी सप्लीमेंट्स को परचेज कर पाना। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो कि नेचुरोमोर को बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाती है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा काबिले तारीफ जिसकी करनी चाहिए वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों, नेटसर्फ की। जो कि अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर खुद की होती है दोस्तों, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि क्वालिटी पे हमारा कंट्रोल रहता है दोस्तों। और क्वालिटी पे जब हमारा कंट्रोल रहता है दोस्तों, तो आपको एक रिजल्ट ओरिएंटेड 110% रिजल्ट देने वाला और मार्केट को जबरदस्त तरीके से कैप्चर करने वाला प्रोडक्ट आपको मिलता है। और इसी कड़ी में आज ये जबरदस्त रिजल्ट देने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे डेली न्यूट्रिशन के, फंक्शनल न्यूट्रिशन के लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो आई होप आज वैसे ये अगर हम लोग आप आमने सामने मिलते तो डेफिनेटली ये एक 2 वे सेशन रहता, हम लोग आपस में बात करते, सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डेफिनेटली शेयर करते देन एंड देयर। बट क्योंकि ये ऑनलाइन वेरिएंट है, सब लोग अगर बीच में बोलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए आज ये थोड़ा 1 वे सेशन रहेगा और आपके जो भी डाउट्स होते हैं दोस्तों, आप अपने साइट के चैट सेशन में आप वो ऐड कर सकते हैं ये सेशन कंप्लीट होने के बाद। और ये सेशन थोड़ा सा 1 घंटा चल सकता है। और अगर आप एक अच्छी नॉलेज चाहते हैं, आप अपनी टीम में एक अच्छी नॉलेज को प्रोलिफरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं, क्योंकि हर जगह पे जब आप बिजनेस के लिए जाते हैं दोस्तों, अपने डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, तो हर जगह पे आपके मैनेजर्स आपके साथ नहीं हो सकते, योगेश सर आपको गाइड करने के लिए नहीं हो सकते हैं, पराग सर नहीं हो सकते हैं। उस समय पे जो सामने बैठा जो पर्सन होता है उसके लिए आप ही नेट सर्फ होते हैं, आप ही फ्रंट फेस होते हैं। अगर वो जो भी क्वेश्चन कर रहा होता है, उसके जो भी क्वेरी होते हैं, आप उस लेवल पे अगर रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके मन में एक क्वेश्चन एक रेज हो जाता है कि मैं जो क्वेश्चन ढूंढने आया, जो मैं करियर ढूंढने आया हूँ, क्या मेरे लिए ये सही हो पाएगा नहीं। इसलिए ये एक ज़रूरी रहता है कि आप एक अच्छे स्पेशलिटी के साथ, एक प्रॉपर नॉलेज के साथ हर एक क्वेरी का आप जवाब दें मार्केट में, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें, आपका ब्रांड बने और लोग आपके साथ करियर बनाने के लिए उत्सुक हों। क्योंकि अगर लोगों को आप में करियर नहीं दिखेगा, अगर आप लोगों में वो अवेयरनेस डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो जो करियर डेवलपमेंट का क्वेश्चन रेज नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो लोग भी आपसे इम्प्रेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों, आपने समय निकाला है तो डेफिनेटली आप सब डायरी पेन के साथ रेडी रहिए और जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती है उसे आप नोट करते जाइए और अपने सारे क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में सेशन के लास्ट में आप डालते जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इतनी जो बातें हो रही हैं, हेल्थ केयर, इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये एक्चुअली में इसको स्टार्ट करने का मुद्दा बना ही क्यों दोस्तों? ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम थोड़ा पुराने समय में जाते हैं, जब जहाँ पे इंसान की जो ज़रूरतें थी वो कम थी और यही आम ज़रूरतें जो कि रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित थी दोस्तों, आदमी इसमें खुश था। बट आज के ज़माने में आपको भी पता है, आपको अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल
देखना होता है, आपको अपनी वाइफ के लिए या हस्बैंड का सपोर्ट करना होता है, माँ बाप का आपको ख्याल रखना पड़ता है, अच्छा घर आपको चाहिए होता है, समाज में आपको उठने बैठने के लिए आपको एक अच्छा स्टेटस चाहिए होता है, जिसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको आज की डेट में पैसे से ज़्यादा मतलब टाइम इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो टाइम कम से कम लगे इसलिए आप कार्स, एयर टिकट, बाइक ये सब पे इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग इतनी दूर बैठे हैं आपस में, आप लोग गुजरात में, मैं चंडीगढ़ में, फिर भी हम लोग नई नॉलेज लेना चाहते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम फ़ोन और लैपटॉप्स का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज देने के लिए हम लोग अच्छे से अच्छा पैसा लगाते हैं अपने ऊपर। तो ये सारी जो नीड्स जो कि एक्सटेंड हो गई हैं पुराने ज़माने से, जो कि आज के दौर पे ये आम ज़रूरतें हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं दोस्तों। इनफैक्ट मैं खुद मानता हूँ कि इंग्लिश में कहावत होती है कि बेटर प्रेशर इज नीडेड फॉर अ बेटर लाइफ। अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, एक बेटर लाइफ चाहते हैं, तो आप ऑर्डिनरी या मतलब ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल को आप जी के आप वो चीज हासिल नहीं कर पाते। हमें थोड़ा सा बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है दोस्तों, अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हमको लगाने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, तब जाके हमको ये सारी चीजें नसीब होती हैं। क्योंकि आप लोग खुद से पूछिए, आपकी टीम में दिसंबर में बहुत सारे लोगों ने प्लान किया होगा कि हम लोग दुबई जाएंगे, हम लोग दुबई जाएंगे, बट दुबई को अचीव किसने किया? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाए। और फिर से हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे प्यारे नेटसर्फ ने हमें फिर से मौका दिया है दुबई के लिए। तो इसीलिए आपके पास दोबारा मौका है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स को अगर आप लगाएं, जिन प्रोडक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, अगर उसी प्रोडक्ट रेंज को अगर आप बढ़ा देते हैं, वो रीच बढ़ा देते हैं, अपना मार्केट बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो यही इनकम आपकी डबल से ट्रिपल क्या 4 गुना हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज हम अप्रैल में बैठे हैं और ये नॉलेज अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों, आप अपने जो प्रोडक्ट रेंज है उसको एलॉबरेट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, आप अपना मार्केट को, अपना जो आपके कंज्यूमर हैं, आप रिटेल को जो आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, उनकी संख्या अगर आप बढ़ाते हैं, तो लिख के लीजिए दोस्तों, ये मैं गारंटी देता हूँ कि जुलाई मंथ में आने वाला जो चेक है वो आपके पे आउट का 4 गुना होने वाला है दोस्तों। तो अब ये जो हेक्टिक लाइफस्टाइल जो हम लोग जी रहे हैं दोस्तों, बट इसका कुछ एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी हमको देखने को मिलता है कि ये सारी लाइफ को मेंटेन करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस हमको लेना पड़ जाता है। ठीक है, और इसी स्ट्रेस के चक्कर में हमारे खाने पीने से हमारा ध्यान हट जाता है, जो कि हमारे बॉडी में वाइटामिन और मिनरल्स की कमी को बढ़ा देता है। और क्योंकि हम लोग सेल्स बैकग्राउंड से, हमको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, दौड़ भाग हमारी ज़िंदगी में लगा रहता है, तो डेफिनेटली हमको बाहर के खाने पे डिपेंड होना ही पड़ता है दोस्तों। इनफैक्ट मुझे भी बाहर के खाने पे डिपेंड होना पड़ता है, जबकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो घर का जो मतलब पौष्टिक आहार है वो बाहर तो डेफिनेटली नहीं मिल सकता, चाहे आप जितना मर्जी पैसे दे दीजिए। तो इसीलिए वो जो जंक फूड है, वो अनसैचुरेटेड फैट है, हमारी बॉडी में जाता है, और लंबे समय तक इसका सेवन करने से हमको बहुत सारी बीमारियां हमको अपने चपेट में ले लेती हैं दोस्तों। तो अब ये जो बीमारियां जो हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, इसका इलाज क्या है दोस्तों? ठीक है, इसका इलाज क्या हो सकता है? क्योंकि जो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये इतनी सारी बीमारियां भी तो लेकर आ रही हैं दोस्तों। क्योंकि आप नॉर्मली वे में इसे मोटापे को आप देख लीजिए, ठीक है, और मोटापा इसे अंग्रेजी में ओबेसिटी कहते हैं। अब ओबेसिटी तो एक प्रॉब्लम है, बट ये अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का गढ़ होता है दोस्तों, जिसके तहत आपको ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज जो कि लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग ओरिएंटेड है, हड्डियों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और कई मायनों में तो कैंसर जैसे बीमारियां भी हमको घेर लेती हैं दोस्तों। अभी कैंसर का नाम मैंने क्यों लिया है दोस्तों? जैसे मैं अगर बात करूं, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, और पंजाब जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अनाज उगाने वाला स्टेट है, बट सबसे ज़्यादा कैंसर पंजाब में ही देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि जो किसान है, उसने अनाज की पैदावार को बढ़ाने के चक्कर में वो जो अनवांटेड केमिकल्स को यूज़ करना, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना चालू किया, उससे उसने हमारे जो अनाज है उसको तो खराब किया ही किया है, साथ साथ अपनी जनरेशन के साथ साथ आने वाली जनरेशन को भी नुकसान में वो ले गए हैं। इनफैक्ट भटिंडा से मुंबई को तो कैंसर स्पेशल ट्रेन चलती है फ्रेंड्स, और इसी कड़ी में हमारे साथ डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी जुड़ गई हैं।
डिप्रेशन जो कि अगर आप 10 साल पहले अगर आप बात करें तो स्ट्रेस डिप्रेशन को लोग सीरियसली लेते ही नहीं थे। इनफैक्ट अगर कोई डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस में है, तो वो लोग उसको और गाली देते थे और उसको निगलेक्ट करते थे, उसको व्यंग करते थे उस पे कि ये तो मतलब दिन भर रोता रहता है, ये नेगेटिव बातें करता है, ये परेशान रहता है, इसको तो दूर रखो, ये अकेले ही सड़ने लायक रहता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कटाक्ष किए जाते थे ऐसे लोगों पे। बट 2005 के बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों डिप्रेशन को एक अहम बीमारी के तौर पे उसे दर्जा दिया, कैंसर जैसी बीमारी के साथ साथ। और डॉक्टर्स भी काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ प्रमोट करते हैं कि डिप्रेशन के मरीजों को भी उपयुक्त दवाइयों का, उपयुक्त काउंसलिंग के साथ वो उनको ठीक किया जा सकता है। तो इतनी जो सारी बीमारियां हो रही हैं ये आपको अपने फ्रेंड सर्कल में और ना चाहते हुए में भी आपको अपनी फैमिली सर्कल में आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका एक ही इलाज होता है। अभी अगर एक ही इलाज में अभी बोल दूंगा तो सब लोग कहेंगे दवाइयाँ ले लो या ट्रीटमेंट थेरेपीज ले लो। बट दोस्तों जो आप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप शैम्पू यूज़ करते हैं, ठीक है, आप शैम्पू अगर नहीं लगाएंगे तो आपके बाल खराब हो जाते हैं, ओके, और ऑब्वियसली खराब हो जाते हैं इसलिए आप शैम्पू लगाते हैं। आप अगर 3-4 दिन नहीं नहाएंगे साबुन से तो क्या होता है, जो डस्ट है, जो डर्ट है आपकी बॉडी में चिपका रहता है, करेक्ट, उससे आपको और बीमारियां आपको घेरने को मिल सकती। तो आप साबुन से लगाते हैं ताकि आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। ब्रश आप क्यों यूज़ करते हैं रोज़ सुबह, क्योंकि वो बैक्टीरिया अगर आपके मुंह में डेवलप होने लगेगा तो मुंह से दुर्गंध, पायरिया और भी बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि टार्टर, आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो इन सारी कंडीशंस में हम लोग प्रिवेंशन यूज़ करते हैं, मतलब खराब होने से पहले हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो हम हेल्थ के केस में क्यों नहीं प्रिवेंटिव, क्यों नहीं हम लोग सोचते हैं, हम हमेशा क्यूरेटिव सोचते हैं। मतलब जब हम बीमार पड़ जाते हैं दोस्तों, हमारी बोन्स कमजोर होके जब टूटने लग जाती हैं झटके से, एक्सीडेंटल, तब हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। अर्थराइटिस जब हो जाता है, हमको स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें कैंसर हो जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने। हम जब मोटे हो जाते हैं, ऐसी डिफरेंट जितनी बीमारियां जब हमको लगती हैं तब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। वो हजारों के, लाखों के मतलब वो बिल्स पे करते हैं और तब भी टेम्पररी बेसिस पे हम अपने आप को ठीक पाते हैं। तो जब हम अपनी हेल्थ को लेके क्यूरेटिव सोचते हैं तो हम अपने इसको प्रिवेंटिव क्यों नहीं हम डेवलप कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल आप नहाने धोने, ब्रश करने, शैम्पू लगाना, स्किन पे क्रीम लगाना ताकि आपकी स्किन खराब ना हो जाए, ये सब चीज़ों में अगर आप प्रिवेंटिव होते हैं तो हेल्थ को लेके भी आपको प्रिवेंटिव होना चाहिए दोस्तों। और प्रिवेंटिव होने के लिए सबसे पहला एक ही सोल्यूशन है, दैट इज बैलेंस डाइट फ्रेंड्स। अब बैलेंस डाइट क्या होता है फ्रेंड्स? बैलेंस डाइट एक्चुअली में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। आप गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, करेक्ट। तो जब आप ये स्कूटर बाइक आप चलाते हैं उसमें आप पेट्रोल डालते हैं। बट आप खुद से पूछिए, क्या आपका स्कूटर बाइक गाड़ी या जो भी आप चला रहे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक पेट्रोल डालने से ही चल जाता है क्या? नहीं, उसमें आपको इंजन ऑयल डालना पड़ता है, कूलेंट डालना पड़ता है, आपके टायर्स अच्छे से फंक्शनल हो उसमें ग्रीसिंग करना पड़ता है, डिफरेंट बहुत सारे ऑयल्स आप यूज करते हैं या कंपनी एंड से वो लग के आते हैं, तब जाके आपकी गाड़ी या कार, स्कूटर, बाइक बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। वैसे ही दोस्तों हमारी जो ऑर्गेनिक बॉडी होती है, ये एक मशीन है, ऑर्गेनिक मशीन है दोस्तों, इसलिए ये भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, क्योंकि हम लोग एज जो हमारी बढ़ती जा रही है, एज के साथ साथ ये अच्छी परफॉर्म करे, इसलिए हमको उस क्वालिटी का खाना खाना पड़ता है अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, मेंस की, वुमेन्स की, बच्चों की, ओल्ड एज या जो लोग एथलेटिक होते हैं, या डिफरेंट भी, सबकी बॉडी अलग होती है। उसके हिसाब से जो उसकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, उसे उस तरीके का खाना खाना चाहिए दोस्तों। दैट इज बैलेंस डाइट, ओके। जो कि आपका वाटर इनटेक आप कैसा ले रहे हैं, वाटर इनटेक के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारे कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। उसके बाद हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्मिक तत्व होता है, उसके फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमारे ओल्ड एज तक हमें
प्रोटीन का इंटेक हमें चाहिए होता है ताकि हम लोग स्ट्रेंथ के साथ फुल्ली फंक्शनल रहें और साथ साथ हमारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्सिव रहे चीज़ों को लेके। बीमारियों के केसेस में तो हमें 13 तरह के एसेंशियल वाइटामिन लेने पड़ते हैं, जो कि विटामिन ए, बी, के, डी, सी, ई और तरह तरह के हमारे इससे रिलेटेड हमारे विटामिन होते हैं। और हमें 10-11 तरीके के हमें तो मिनरल्स हमें लेने पड़ते हैं, जिसमें आपका जिंक, कैल्शियम और भी बहुत सा तरह तरह के आपके मिनरल्स इस कड़ी में शामिल होते हैं। तो आप खुद से पूछिए कि आप जो आप इन्वेस्ट करते हैं सोप, ब्रश में, शैम्पू में, स्किन केयर की क्रीम्स में, आप लोग अपने हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए आपके घर में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स कौन कौन से आते हैं दोस्तों? क्या वही वो महीन पिसा हुआ आटा आता है? क्या वो वही केमिकल फर्टिलाइजर से भरा हुआ सब्जियां आपके आती हैं, फ्रूट्स आते हैं आपके पास में? और या शाम को खाने के लिए तली भुनी वो पापड़ हो गए, वो चिप्स जो आप खाते हैं, क्या वो आप लोग हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए खाते हैं? सो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए और यही अवेयरनेस आपको दोस्तों मार्केट में भी प्रमोट करनी चाहिए कि आप अपनी हेल्थ को डेवलप करने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस के लिए, हेल्थ के लिए आप क्या प्रोडक्ट्स हेल्थ के यूज करते हैं फ्रेंड्स। और जिसका जवाब है हमारे नेचुरोमोर दोस्तों, ठीक है। नेचुरोमोर जो कि नेशनल अवार्ड विजेता है एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर का दोस्तों, ठीक है। और यही नहीं फ्रेंड्स, इकोनॉमिक टाइम्स 2021 में नेचुरोमोर को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का दर्जा दिया है दोस्तों। ये हमारे लिए काबिल तारीफ बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है फ्रेंड्स। और यही नहीं, ऐसे सेलिब्रिटीज जिनको पूरा देश क्या विदेशों में बैठे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनकी अच्छी लाइफस्टाइल, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल्स को लेके वो लोग भी प्राउड के साथ सर उठा के हमारे नेचुरोमोर को प्रमोट कर रहे हैं कि दोस्तों इसको आप अपनी जिंदगी में डालिए, इसको अपनाइए और अच्छी हेल्दी बॉडी को, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। तो क्यों ना हमें ऐसे प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में जगह देनी चाहिए दोस्तों। और मैं कुछ स्लाइड्स जो कि पीछे रह गई थी मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो कि आज मार्केट में आप देखते आ रहे हैं, जो कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप लोग काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके आपके साथ जुड़ेंगे और हेल्दी फूड्स, हेल्दी डाइटरी सप्लीमेंट्स को अपनाने में आपके साथ होंगे। तो ये है को रीज़न, क्योंकि हर जगह जो हम केमिकल्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तरह तरह के आप टीवी में, न्यूज़पेपर्स में आप देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं जब महाराष्ट्र ट्रैवल कर रहा था दोस्तों, तो मैंने देखा तलावना करके कोई क्षेत्र था जहाँ पे 21 किसानों की मौत हो गई केमिकल वाला खाना खाने से। अपना ही अनाज खा के बेचारों की मौत हो गई दोस्तों। मैं साउथ इंडिया ट्रैवल कर रहा था, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 71 आंगनबाड़ी स्कूल में जाने वाले बच्चों की मौत हो गई दोस्तों केमिकल युक्त खाना खाने से। तो ये हमारे लिए चिंताजनक बात नहीं दोस्तों, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे समाज में, हमारे इंडिया में जो कि अच्छे खासा अनाज हम लोग पैदा करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम प्रमोट करते आ रहे हैं, बट आज के डेट में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि ऐसी प्रॉब्लम्स, इस श्राप से ग्रसित है दोस्तों। तो हमको ये चेंज करना है दोस्तों, हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, ये सोशल वर्क है। और ये सोशल वर्क करते करते हम एक ऐसा करियर का प्लेटफॉर्म हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये तो लिटरली काबिल तारीफ बात है और आपको सर उठा के फुल प्राउड के साथ इससे प्रमोट करना चाहिए दोस्तों। तो नेचुरोमोर क्यों अपने आप में खास है दोस्तों? क्योंकि वो आयुर्वेद के गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद क्या है? ये हमारे दुनिया का, हमारे देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना साइंस है दोस्तों। जहाँ पे बाकी दुनिया अपने जीवन यापन के लिए मतलब सोच रहे थे क्या करना चाहिए, वही हमारा भारत देश आयुर्वेद के साइंस को पूरी दुनिया में फैला रहा था कि औषधियों के, जड़ी बूटियों के फायदे से आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। करेक्ट। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों? आपके नेचर में मौजूद जितने भी तत्व जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, उसको टेक्नोलॉजी की मदद से हम प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देते हैं ताकि
ह्यूमंस इजीली उसे कंज्यूम कर सकें। सो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए कि इतनी अच्छी रिसर्च के बाद बायोटेक्नोलॉजी की मदद के बदौलत उन्होंने ये वंडरफुल प्रोडक्ट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हमारे बीच में हमको प्रेजेंट किए हैं। सो और ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये मिलता है हमको, जैसे आपको सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाली स्लाइड्स में दोस्तों। कोलेस्ट्रम, केराटिनॉइड और भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा, ब्रह्मी शतावरी के साथ ये नेचुरमोर आपके हाथों में आता है दोस्तों। अभी नेचुरमोर का जो पहला वेरिएंट है दोस्तों वो हमारे पुरुषों के लिए है, मेंस के लिए है। 50% प्रोटीन, 13 विटामिन, 10 मिनरल्स के साथ ये अवेलेबल होता है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर जो कि वनीला फ्लेवर है, उसके साथ फ्रेंच वनीला इनफैक्ट उसके साथ ही अवेलेबल होता है। और वुमेन्स के लिए जो कि हमारे नेचुरमोर सबसे हॉट सेलिंग रेंज रहती है दोस्तों। और इसको नेचुरमोर फॉर वुमेन को बनाने का मकसद क्या है दोस्तों, क्योंकि जो वुमेन्स की बॉडी होती है दोस्तों वो मेंस की बॉडी से डिफरेंट होती है। उसमें बचपन से ही हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम रहती है और उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उन्हें अच्छा पोषक तत्व बॉडी में डालना बेहद जरूरी हो जाता है। और कई ऐसी महिलाएं हमारे बीच में भी मौजूद होंगी जिनको मतलब थायराइड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और सर्वाइकल रिगार्डिंग, अर्थराइटिस रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और कई ऐसी महिलाएं आपको भी सुनने में आता है उनको पीसीओडी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, मतलब उनकी ओवरीज में गांठें पड़ जाती है दोस्तों, जिसका उन्हें पता तब चलता है 28 साल की उम्र में जब वो कंसीव करने वाली होती हैं। तब सोचिए कितना पेनफुल मोमेंट होता है उनके लिए जब डॉक्टरों ने कहता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो ये प्रॉब्लम उनके बॉडी में इतने सालों से होता है फिर भी उनको पता नहीं चलता है। लिक्यूरिया जैसे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। उन्हें हैवी ब्लीडिंग, मंथली ब्लीडिंग के रिगार्डिंग उन्हें प्रॉब्लम्स रहते हैं। मेनोपॉज, ओल्ड एज में जाने पर भी उन्हें मेनोपॉज जैसा प्रॉब्लम्स ये पीछा नहीं छोड़ता है। और ऐसे इश्यूज वुमेन्स की लाइफ में हमेशा बने रहते हैं। तो वो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में बिना किसी तकलीफ के अपना काम कर सकें, अपने घर का ख्याल रख सकें, इसीलिए नेचुरमोर फॉर वुमेन को इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों। 40% प्रोटीन्स की खूबियों के साथ में, 13 विटामिन, 11 मिनरल्स के साथ दोस्तों। और हमारे बीच में हमारे प्यारे बच्चों के लिए, इन छोटे बच्चों के लिए नेचुरमोर फॉर किड्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब दोस्तों नेचुरमोर किड्स को इंट्रोड्यूस करने का क्या तुक बनता है, ठीक है, मेंस है, वुमेन्स है, सारी उनके लिए तो हमने प्रोडक्ट्स बना दिए। किड्स के लिए भी, ये जो छोटे प्यारे बच्चे हैं जो कि आने वाला कल है, हमारे देश का फ्यूचर है, ठीक है, ये छोटे बच्चे, इनको हमसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है दोस्तों। इन्हें स्कूल में जाना होता है, परफॉर्म करना होता है अच्छा, स्कूल से आने के बाद घर में होमवर्क को लेके ये परेशान रहते हैं, होमवर्क के बाद इनको शाम को ट्यूशन जाना पड़ता है। उन्हें फिर अगर आप लोग ने उन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डाला होता है उन्हें, तो उन्हें स्पोर्ट्स में भी परफॉर्म करना होता है, डांस, सिंगिंग या डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें उनमें परफॉर्म करना पड़ता है, पीयर प्रेशर रहता है। तो जो छोटी सी जो जान है जो कि डेवलपिंग बॉडी है, उनका मस्तिष्क, उनका ब्रेन भी डेवलपिंग है, उस स्टेज में अगर उन्हें वो पोषक तत्व नहीं मिलेगा दोस्तों तो भी वो अंडर परफॉर्मर रहते हैं, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और आपको क्या लगता है कि ये मतलब चिड़चिड़े हो रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उस केस में पेरेंट्स और उन्हें डांटते हैं और उन्हें मतलब फोर्स करते हैं चीज़ों के लिए कि मतलब वो उनका फोकस नहीं हो पा रहा है। क्यों, कैसे फोकस बन पाएगा दोस्तों अगर माइंड को, उस डेवलपिंग ब्रेन को उस लेवल का जो पोषक तत्व अगर नहीं मिलेगा तो वो भी फोकस, कंसंट्रेशन नहीं दे पाएगा दोस्तों। इसीलिए आज की डेट में नेचुरमोर फॉर किड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ये मजबूरी हो गया है इनफैक्ट दोस्तों। और आज के समय की अगर मैं बार बार बात कर रहा हूँ तो ये कोविड का टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ पे मतलब बच्चों की इम्यूनिटी को लेके सबसे बड़ा सवाल रहता है, इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी को लेके बहुत बड़ा सवाल रहता है। इसीलिए हमको इस लेवल के जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं इसको अपने डाइट में ऐड करना पड़ता है दोस्तों, ओके। और बच्चे जो होते हैं मार्केट में, अभी आप लोग नेटसप में हैं, आप लोग अवेयर हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है हमारे लिए, तो आप में से बहुत मेजॉरिटी लोग नेचुरमोर फॉर किड्स को यूज़ कर भी लेते होंगे। बट
आपके बाहर, मार्केट के बाहर जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो तो अपने बच्चों को कॉम्प्लान ही देते हैं, बॉर्नवीटा ही देते हैं। मैं नाम लेना चाह रहा था, बट मार्केट में यही कैसे ब्रांड्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं जो कि अभी चल रहे हैं। तो अब इस केस में आप खुद देखिए, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको फ्लेवर्ड शक्कर ही मिलती है। ओके, और ये वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं ये समझ के कि उससे उनका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, बॉडी डेवलप हो जाएगा, जो कि सरासर गलत है। आप खुद से भी पूछिए क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए नेचुरमोर किट्स जरूरी होता है। और इसी कड़ी में हमारा ये काफी खास प्रोडक्ट नेचुरमोर प्लस शामिल है। ये उन लोगों के लिए दोस्तों, ये एक ऐसी कैटेगरी के लिए है जो आम इंसान से ज्यादा ऑर्डिनरी से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ रूटीन ये लोग जीते हैं। अपने हेल्थ पे ये लोग ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ये लोग। और इनफैक्ट जो ओल्ड एज के लोग भी होते हैं, जिस एज में उन्हें अच्छा एक प्रोटीन लेवल चाहिए होता है, साथ साथ बहुत सारे ऐसे एडेड बेनिफिट्स चाहिए होते हैं न्यूट्रिशन के नाम पे, तो ऐसी कैटेगरी के लिए नेचुरमोर प्लस वरदान साबित है दोस्तों। 60% प्रोटीन, 13 विटामिन, 11 मिनरल्स के साथ साथ, और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको खास बनाते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में दोस्तों। अभी क्या रहता है दोस्तों कि जो नेचुरमोर, जो कि आपने 4 वेरिएंट्स तो देख लिए कि नेचुरमोर प्लस, मेंस, वुमेन्स एंड किड्स, इसमें आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली जो रो है, इसमें कुछ चीजें सेम दी गई हैं। ये सारे के सारे प्रोटीन है जो कि हमने अपने नेचुरमोर में ऐड किए हैं दोस्तों। सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन फैट दोस्तों। इनका बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स? अभी ये डालने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि, और ये मेरे लिए काफी ताज्जुब है और प्राउड का मोमेंट है कि मैंने वर्ल्ड वाइड मैंने प्रोडक्ट्स देखे हैं अच्छे से अच्छे महंगे 5-5, 8-8 हजार, 10-10 हजार के मैंने प्रोटीन पाउडर्स और हेल्थ शेक देखे हैं जो कि एक ही तरह का प्रोटीन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन की कमी को वो ऐसा दावा करते हैं, बट हर बॉडी सेम नहीं होती है दोस्तों। और इनफैक्ट नेटसर्फ की भी बात करें तो नेटसर्फ भी हमारे देश की सीमा को लांग कर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कदम रख चुका है, अमेरिकन मार्केट्स, मलेशियन मार्केट्स में कदम रख चुका है दोस्तों। इसीलिए ये नेचुरमोर को भी एडवांस होना पड़ा था, और नेचुरमोर ने एक नहीं 5 तरीके के प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया। अब हम एक एक प्रोटीन की बात करते हैं दोस्तों, जैसे सोया प्रोटीन। ये सोया प्रोटीन जो होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन इंड्यूस करने वाला एक खास तरह का प्रोटीन रहता है, क्योंकि ये सोया से हमको मिलता है डेफिनेटली। अब ये आपकी डाइट की इम्प्रूवमेंट के लिए या आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, आपके इनफैक्ट कैंसर तक के प्रिवेंशन के लिए, और स्पेशली अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मेनोपॉज जैसी डिफिकल्टीज को भी दूर करने में हेल्प करता है, और ओवरऑल ओबेसिटी को, मोटापे को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वे प्रोटीन पे अगर हम नजर डालें तो दोस्तों ये पूरी दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं कि जो वे प्रोटीन होता है मसल मास और स्ट्रेंथ को डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो जाता है, आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एसेंशियल हो जाता है, और ये साथ साथ ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, और साथ साथ वेट लॉस के लिए भी ज्यादा एसेंशियल हो जाता है। और इस कड़ी में मिल्क प्रोटीन दोस्तों क्या रहता है? ये एक स्लो एब्जॉर्ब प्रोटीन रहता है दोस्तों। इसका बेनिफिट क्यों, ऐसा किस लिए? क्योंकि आप देखते हैं कई बार जैसे आप सोते हैं और जब आप सुबह उठते हैं दोस्तों, तो आप क्या भी आप अकड़न महसूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग फील करते हैं, अकड़न हो गया, या स्टिल दे फील लिटिल टायर्ड, कमजोर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उस नींद के टाइम पे, उस बीच में जो भी डीजेनरेटेड प्रोटीन, जो भी मसल्स होती हैं बॉडी में, वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। ओके, वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हमको वो टायर्डनेस फील होती है, वो अकड़न महसूस होती है। तो ये जो खास तरीके का प्रोटीन होता है मिल्क प्रोटीन से, केसीन नाम है इसका एक्चुअली, ठीक है, केसीन जो रहता है स्लो एब्जॉर्ब प्रोटीन रहता है। तो ये धीरे धीरे बॉडी को रिपेयर करता है, या आपकी मसल्स को रिपेयर करता है। और एक ये खास तरीके का प्रोटीन जो कि पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन है। पी प्रोटीन स्पेशली वुमेन्स के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है ये, क्योंकि जो हर मंथली जो ब्लीडिंग्स में उन्हें जो ब्लड लॉस होता है, उससे उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है दोस्तों। इसलिए वुमेन को अगर अच्छे से फंक्शनल होना पड़ता है या होना है,
तो फिर उन्हें आयरन की नेसेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए प्री प्रोटीन उनके लिए वरदान साबित हो जाता है दोस्तों। और मेंस के लिए भी इनफैक्ट आयरन डेफिनेटली ज़रूरी रहता है। और साथ साथ राइस प्रोटीन की बात करें तो ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है, फैट बर्निंग कैपेसिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। और ये आपके लिवर, किडनी, हार्ट, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर हो जाता है। तो अब इतनी सारी खूबियाँ इस एक एक डब्बे में मौजूद हैं, तो क्यों नहीं हमें इसको अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लोगों को तो भाग भाग के ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। आपको ये अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों मार्केट में। और ये ऐसे चंद इंग्रेडिएंट्स थे जो कि हम सारे नेचुरमोर में देते हैं। कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स तो हम डिफरेंट डिफरेंट नेचुरमोर में भी देते हैं। जैसे आपको प्लस में आपको मिल जाता है ओमेगा 3 DHA, LDL जो गुड आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, क्योंकि जैसे जो एथलेटिक्स होते हैं या जो ओल्ड एज में लोग होते हैं, उनको अपना डाइजेशन, उनको मेटाबॉलिज्म अपना अच्छा चाहिए होता है। इसीलिए प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उनके डाइजेशन को अच्छा रखता है। उनके खाने पीने जो भी जिस तरह का वो डाइट लेते हैं उसके प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं दोस्तों। और साथ साथ फाइबर के गुणों से ये रहता है ल्यूटिन जेंथनिन, जो ल्यूटिन जेंथनिन जो है काफी डिफिकल्ट से वर्ड आपको देख रहे हैं, एक्चुअल में ये डाइजेस्ट होने के बाद विटामिन ए में तब्दील हो जाते हैं, जो कि आपकी आइस की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। फिर कोलेस्ट्रॉल इसमें मौजूद रहता है। कोलेस्ट्रॉल क्या रहता है दोस्तों, हमारे नॉर्थ में से खीस कहते हैं, जो कि मैमल्स का फर्स्ट मिल्क होता है, जो स्पेशली गाय भैंस का जो पहला जो दूध होता है उसे खीस कहते हैं। और मैं इनफैक्ट महाराष्ट्र में ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पे तो उसकी एक स्पेशली मिठाई बनती है जिसे खरवस कहते हैं। गुजरात में आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, वो आप मेरे को चैट में ज़रूर टाइप करके बताइए, मुझे भी जानना है। तो ये जो खीस के जो गुण हैं, ये हमने हमारे नेचुरोमोर में ऐड किए हैं दोस्तों, ठीक है। और साथ साथ नॉट बट द लीस्ट, एलोवेरा, मैं पूरे वर्ल्ड वाइड मैंने प्रोडक्ट्स देखे हैं, और अगर मैं एलोवेरा की बात करूं तो ये 500 से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं एलोवेरा के हमारी बॉडी को, मतलब अच्छे बेनिफिट्स देने के लिए। और एलोवेरा जब आप मार्केट में जाते हैं तो ये आपको जेल या लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, बट पाउडर्ड फॉर्म में एलोवेरा को इंट्रोड्यूस करने वाली मैंने पहली कंपनी देखी है फ्रेंड्स पूरे इंडिया में। ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है, जो कि इतना अच्छा प्रोडक्ट एलोवेरा उसके गुणों को भी नेचुरोमोर को इससे वंचित नहीं किया, वो भी उसमें ऐड किया फ्रेंड्स। और वैसे ही हमारे मेंस और किड्स में हमने अश्वगंधा ऐड किया हुआ, जो कि स्ट्रेस लेवल को कम करता है, अच्छी नींद को प्रमोट करता है। और हमारे वुमेन्स के लिए हमने इसमें ओमेगा 3 DHA, करक्यूमिन, शतावरी जैसे हमने तत्वों को हमने ऐड किया है फ्रेंड्स। और वुमेन वेलनेस जो हमारा डाइटरी सप्लीमेंट, उसमें मैं इसको थोड़ा और इलाबरेट करूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो अभी हमने ये सारी बातें हमने जानी है नेचुरोमोर को लेके दोस्तों, ठीक है। और इसे कोई भी कंज्यूम कर सकता है, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, कुछ भी काम करता हो, ठीक है, कोई भी इसे कंज्यूम कर सकता है। अब हम लोग आपका नेचुरोमोर को लेके कोई भी डाउट रहता है दोस्तों, उसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में एक एक करके दोस्तों। तो इस कड़ी में वन ऑफ माय फेवरेट डाइटरी सप्लीमेंट दैट इज जॉइंट केयर, ओके, ये शामिल है। अब जॉइंट केयर का जरूरत क्यों पड़ा दोस्तों इसको डेवलप करने की? और इनफैक्ट मेरा उम्र 30 साल है, ओके, और मुझे कोई बोन्स का प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं प्रिवेंटिव कॉशन अपने लिए आजमाता हूँ। और आने वाले टाइम में जब 50, 60, 70 की जो मेरी उम्र रहेगी, तो उस टाइम पे जाके अगर कोई बोन्स का प्रॉब्लम होता है, वो ऐसा ना हो, इसलिए मैं अभी से ही अपनी बॉडी को वो न्यूट्रिशन दे रहा हूँ जो कि मेरी बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, उनकी मजबूती के लिए कारगर रहता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि फैक्ट्स पे अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, इसके 1 करोड़ से भी ज्यादा हमें केसेस देखने को मिलते हैं हमारे देश में हर साल। रूमेटॉइड अर्थराइटिस दोस्तों, जिसके 2 करोड़ से भी ज्यादा हमें केस देखने को मिलते हैं। स्पॉन्डिलोलिसिस, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, इसके भी आपको 1 करोड़ से ऊपर आपको केसेस देखने को मिलते हैं। और ये 3 महीने
3 महिलाओं में 1 महिलाओं को डेफिनेटली हड्डियों की प्रॉब्लम होती है और 8 पुरुषों में 1 पुरुष को ये प्रॉब्लम होती ही होती है दोस्तों। तो ये जो रेशियो ये बहुत ही खराब है दोस्तों। और इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ विटामिन डी, डीएचए। अब जो लैक ऑफ ये विटामिन डी क्या होता है दोस्तों? जो हम जब सूरज में बैठते हैं, सूरज से हमको नहीं मिलता है, जो सनलाइट होती है वो हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसी को एब्जॉर्ब करता है, डेवलप करता है विटामिन डी में, ठीक है। सो इसलिए कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स को भी सनलाइट लेनी चाहिए ताकि उनके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो सके। सेडेंटरी लाइफ, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, चलना फिरना नहीं, इम्प्रॉपर पोस्चर, स्ट्रेस, एक्सेसिव जो स्कूटर बाइक चलाना सड़कों पे एक्सेसिव, और एक्सीडेंट, इंजरी, ओल्ड एज या दवाइयाँ। अब दवाइयाँ भी अगर आपको किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, नी का आपको सर्जरी कराना है, अर्थराइटिस हो गया, गाउट का प्रॉब्लम हो गया, आप उसके लिए मतलब इलाज कराते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो इससे क्या रहता है दोस्तों? पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, और साथ साथ ही आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, लिवर को, लंग्स को, किडनी को अफेक्ट करता है ये सारी दवाइयाँ। बट हमारा जॉइंट केयर इसको कैसे ठीक करते हैं दोस्तों? जो जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में एक तत्व होता है जो जिससे हमारी नाक बनी है, जिससे हमारा कान बना है, उसे कार्टिलेज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। लोग इसे सॉफ्ट बोन भी कहते हैं, मतलब नाजुक हड्डी भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेज होता है दोस्तों, इसके भी बीच में एक ग्रीस जैसा तत्व होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जब यही सिनोवियल फ्लूइड जब खत्म हो जाता है तो कार्टिलेज घिसने लगता है, और जब कार्टिलेज घिसने लगता है तो हड्डियों में फ्रिक्शन होता है और हमको दर्द होता है दोस्तों, ओके। तो ये इसमें मौजूद शलाकी जो होता है इसी ग्रीस को, इसी कार्टिलेज को नरिश करता है, उसको दोबारा से बनने में हेल्प करता है। इस जॉइंट केयर में रसना अवेलेबल है दोस्तों। रसना मतलब वो रसना नहीं है जो आप बच्चों को देते हैं, मतलब ठीक है, स्कूल से आने के बाद में, तो ये वो चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। ये औषधि है जो कि इस पेन को कम करने में, उसको जड़ से हटाने में मदद करता है। हडजोड़ इसमें मिला है जो कि बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है दोस्तों। गूगल मौजूद है जो कि अर्थराइटिस को होने से बचाता है, उसको रिवर्स करता है। और अश्वगंधा क्या करता है? ये सारी जड़ी बूटियां आपकी बॉडी में अच्छे से अडॉप्ट हो जाएं, ये एब्जॉर्ब हो जाएं, उससे आपको गुण मिले, तो अश्वगंधा ये काम करता है फ्रेंड्स। डायबिटीज, इस कड़ी में जो दूसरा डाइटरी सप्लीमेंट मैंने लिखा है दोस्तों, दैट इज डायबिटीज, जो कि आज की डेट का कैंसर हो गया है दोस्तों, ठीक है। हम देखते हैं कि हर साल 6 करोड़ से ऊपर हमको डायबिटिक केसेस मिलते हैं, 3 करोड़ से ऊपर हमको प्री डायबिटिक केसेस मिलते हैं, और 2030 तक अगर दोस्तों ये रेशियो चलता गया तो 25 से 30% का जो ये रेशियो तब्दील हो जाएगा। और ये जो 6 करोड़ 3 करोड़ जो केसेस देख रहे हैं, 10 करोड़ पे तब्दील हो जाएंगे, और हर साल 10 लाख लोगों की मौत निश्चित है इस डायबिटीज से होने वाले किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, नर्व डैमेज के कारण दोस्तों। इसलिए हमको बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा डायबिटीज को। और डायबिटीज ये जेनेटिकली तो होता है, टाइप 1 डायबिटीज हो गया, ठीक है। ये आपकी लाइफस्टाइल में कमी के कारण, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जिएंगे तो उससे भी आपको डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जेनेटिक के साथ साथ हेरिडिटरी, जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज में कमी, स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग। अभी अल्कोहल से मुझे केस याद आया, हमारे एक नोन थे, मतलब वो कहते थे मेरे को डायबिटीज है, मैं दवाइयाँ अच्छे से लेता हूँ, मेटमॉर्फिन, ग्लाइकोमेट, ठीक है, बट मैं अल्कोहल ले लेता हूँ मैं हर अल्टरनेट डेज में। तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूँगा, अल्कोहल इज अ प्योर शुगर। आप दवाई ले रहे हो, खाना अपनी डायबिटीज को लेके वो ठीक रख रहे हो, बट आप बार बार तो वो अल्कोहल तो अपने ब्लड में डाल ही रहे हो ना फ्रेंड्स, तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? इसीलिए ये सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ता है अगर हम इस कंडीशन में हैं। और डायबिटीज़, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, आप इंसुलिन पे डिपेंड हो जाते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, आपके जो ब्लड होता है उसमें शुगर का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा पनपने लगता है, इसलिए आपको बहुत सारे दवाइयाँ या इंसुलिन की डोजेज पे आपको डिपेंड रहना पड़ता है दोस्तों। तो उस केस में हमारा लाइफस्टाइल प्लस क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट देता है दोस्तों। शुगर के वॉल्यूम को तुरंत ये नीचे करता है ये, ठीक है। इनफैक्ट टाइप 1 डायबिटीज तक में इसका रिजल्ट देखने को मिला है। हमारे एक पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर थे जो कि 56 यूनिट इंसुलिन कंज्यूम करते थे अपने डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए, ठीक करने के लिए,
और लाइफस्टाइल प्लस के सेवन से 1 साल बाद वही 56 यूनिट से 23 यूनिट में आ गया। ये मतलब उनके लिए तो ये वरदान था। तो वो तो उनके लिए लाइफस्टाइल प्लस तो जैसे भगवान साबित हो गया। और वो केमिस्ट की शॉप चलाते थे, उन्होंने उसे बंद करके 110% अपना लाइफ, अपना टाइम डिवोट किया नेट सर्फ को, कि इसके बेनिफिट्स वो दूसरों को बताए। और इससे होने वाले जो इनकम थी, बेनिफिट्स थे, उससे उन्होंने अपना घर चलाया, उससे उन्होंने अपने साबित किया इस चीज को लेके दोस्तों। तो लाइफस्टाइल प्लस जो ममेजा होता है, आइलेट न्यूजेनेसिस प्रॉपर्टीज, ठीक है, को शेड करता है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है दोस्तों। ये इसमें मौजूद गुरमर आपके एक्स्ट्रा ब्लड में मौजूद शुगर को डिस्ट्रॉय करता है दोस्तों। मेथी जो होता है ये आपके, अब मेथी एपेटाइट सप्रेसेंट क्या रहता है ये, कि जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं दोस्तों, उनको कुछ आदत बन जाती है कि उन्हें हर आधे घंटे, हर कुछ मिनटों बाद कुछ ना कुछ खाना होता है, जो कि उनके सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रहता है दोस्तों। इसलिए मेथी क्या करता है कि उनकी भूख को कंट्रोल करने में हेल्प करता है फ्रेंड्स, और उन्हें टाइमली खाने के लिए मेंटेन रखता है। और अब हम बात करते हैं हमारा डाइटरी सप्लीमेंट न्यूट्री हार्ट फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक हार्ट जो एक ऐसा ऑर्गन है जिसपे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, करेक्ट। अभी कोई अगर कोई मोटा हो जाता है, ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मोटा वर्ड, बट आप इजीली समझाने के लिए मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ता है। अगर कोई पर्सन ओबीज है, ठीक है, ओबेसिटी से ग्रस्त है, मोटापे का शिकार है, तो वो माइट भी अपनी डाइट को मैनेज करते हैं, कुछ दवाइयाँ हो गई या एक्सरसाइज हो गई, रिजीम से वो खुद को पतला करने की कोशिश करते हैं। किसी का स्किन में खराबी आ जाती है तो वो तरह तरह की क्रीम लगाता है, वो वाइटामिन्स को अपने खाने में ऐड करता है एंड स्किन को ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ऐसी जितनी भी विजिबल बीमारियां होती हैं या विजिबल ऑर्गन्स को लेके, तो उसके लिए वो काम करता है। बट हार्ट जो हमारा सबसे मेहनती ऑर्गन है फ्रेंड्स, उसको लिए तो हम कुछ सोचते ही नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, भूपेंद्र नाम का, मेरे से 2 साल छोटा था इनफैक्ट। मैं उस टाइम पे उसकी उम्र 26 साल थी कॉलेज के टाइम पे, और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि एक तो वो अगर काया बोलें या साइज बोलें तो वो पतला था। अभी लोगों में एक होता है ना कि अगर कोई पतला आदमी है तो वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। और वो उसमें किसी और तरह की बीमारी भी नहीं थी, बट स्टिल पता नहीं कैसे उसको हार्ट कंजेशन का प्रॉब्लम्स हुआ, और थोड़े टाइम बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई दोस्तों। हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था। और ये आज के समाज के लिए भी इस पे ध्यान देने की बात होती है दोस्तों। अगर आप फैक्ट्स पे बात करें, हाइपरटेंशन के 12 करोड़ लोग, हमको ये केस देखने को मिलते हैं दोस्तों हर साल। कोरोना आर्टरी डिजीज के 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस, हार्ट अटैक के भी 12 करोड़ से अधिक, और ये 17.5 मिलियन लोगों की मौत होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के कारण। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है दोस्तों, अगर ये जो रेशियो अगर चलता रहा तो 2030 तक, अगर आपने अवेयरनेस नहीं बढ़ाई, आपने अपने खाने पीने को ठीक नहीं किया, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, तो यही जो रेशियो है 23 मिलियन तक पहुंच जाएगा दोस्तों, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। इसलिए आज ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ज़रूरी है। हमारी सेहत आगे आने वाले टाइम में ख़राब ना हो, इसलिए हमको आज ही हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और हार्ट से होने वाले प्रॉब्लम्स, कोरोना आर्टरी डिजीजेज, कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेज, कार्डियक अरेस्ट, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं कैसे होते हैं, इम्प्रॉपर डाइट दोस्तों, अगेन स्मोकिंग, अल्कोहल, ओल्ड एज, हेरिडिटरी, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी इनफैक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप खुद से पूछिए। आप लास्ट टाइम कब 500 मीटर की दौड़ आपने लगाई होगी एकदम एकदम बिना रुके? आप कब 3-4-5 माले का आप सीढ़ियां बिना हांफते हुए, बिना मतलब किसी परेशानी के आप ऊपर गए और नीचे आ गए होंगे, चढ़ फिर लिए होंगे? मुझे नहीं पता, आप खुद से पूछिए इस चीज़ को लेके, करेक्ट। और इनफैक्ट मैं एक डाइटिशियन हूँ, हमारे जब मैं प्रैक्टिस करता था क्लिनिक में, तब हमारी एक हार्ट के पेशेंट्स के लिए हम लोग एक उनको जानने के लिए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या है, हम लोगों ने एक मजाक में एक ट्रायल बोलते थे करने को, कि अगर आप आपका मनपसंद गाना बिना किसी उसके टेम्पो को चेंज के, टेम्पो मतलब
गाना जो जिस स्वर में है उसी स्वर में गाते हुए अगर आप 2 माले की बिल्डिंग अगर आप चढ़ गए या उतर गए तो आपका हार्ट ठीक है। बट अगर गाने का जो टेम्पो चेंज हुआ ऊपर नीचे तो डेफिनेटली आपको अपने हार्ट की हेल्थ को लेके ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको यही थोड़ा बहुत चलने के कारण, ज़रा सा भाग लेने के कारण, सीढ़ी चढ़ने उतरने के कारण आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप हाँफ रहे हैं, पैल्पिटेशन मतलब दिल आपका बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है, हेडेक का प्रॉब्लम, चेस्ट पेन का प्रॉब्लम दोस्तों, या आपको थकावट महसूस हो रही है, तो आपको अपने प्यारे दिल का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और इस कड़ी में अगर आप दवाइयाँ लेते हैं, कोई ट्रीटमेंट, कोई थेरेपीज लेती है, तो अगेन आपके माइट भी आपके हेल्थ के लिए या आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, मतलब जो भी अगर आप इकोस्प्रिन, वॉरफिन, आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या आप कोई डिफरेंट दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो आपको दिल के लिए माइट भी आपको टेम्परेरी रिलीफ दे रहे हैं, बट आपके लीवर को, लंग्स को, किडनीज के लिए ये एक श्राप महसूस हो जाता है और उनको डैमेज करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसीलिए हमको न्यूट्री हर्ट को अपने लाइफस्टाइल में जगह देनी चाहिए। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स अगेन, बट मैं हर महीने अपना डाइटरी सप्लीमेंट चेंज करता हूँ। इस महीने मैं ऑब्वियसली मैं इम्यून प्लस ले रहा हूँ इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। इससे पिछले मंथ में न्यूट्री हर्ट ले रहा था, इससे पिछले मंथ में हमारा जॉइंट केयर ले रहा था दोस्तों। तो मैं हर महीने हमारे डाइटरी सप्लीमेंट चेंज करता हूँ ताकि हर एक बॉडी पार्ट को हर एक तरीके से मैं अपनी हेल्थ को फायदा पहुंचा सकूं। वैसे ही हमारे न्यूट्री हर्ट क्या करता है, इसमें फ्लैक्स सीड्स होते हैं दोस्तों, जो कि ये आपके हार्ट और ब्लड आर्टरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये किसी भी तरह का हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल को जमने से आपको रोकता है। ग्रेप सीड होता है दोस्तों इसमें। अभी क्या हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहाना बनाते हैं कि हार्ट की ताकत को बढ़ाने के लिए वाइन पीना चाहिए दोस्तों। तो ये जो बहाना है, अगर कोई आपको बनाता है तो उसे तुरंत हाथ जोड़ के मना कीजिए, क्योंकि वाइन एक्चुअली क्यों बोला जाता है हार्ट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ग्रेप सीड्स होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो ग्रेप सीड्स का फ़ायदा लेने के लिए वो अल्कोहल भी लेना ज़रूरी है। आप नॉर्मल ग्रेप्स भी खा सकते हैं, जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल रहता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें गूगल है जो कि आपकी हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए काम करता है। सेलेनियम है दोस्तों जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अर्जुना है जो कि आपके हार्ट के पंपिंग एक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी प्रकार अगर इसी तरह का जो न्यूट्रिशन आपके हार्ट को अगर मिलता रहता है तो आपका जो दिल होता है सदा जमा रहता है, ठीक है। हर एक एज ग्रुप में आपका दिल काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है फ्रेंड्स। इसीलिए न्यूट्री हार्ट को डेफिनेटली आपको अपने रिजीम में जगह देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे लिवर के बारे में दोस्तों। सो ये एक खास और अहम ऑर्गन है फ्रेंड्स, कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऑर्गन इसकी जगह नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका लिवर होता है ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज करने में हेल्प करता है फ्रेंड्स। ये आपके खाने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। आपके बॉडी में कोई किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको हटाने में हेल्पफुल रहता है। अगर आपको चोट लग जाती है दोस्तों तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसका रिस्पॉन्सिबल आपका लिवर होता है, ठीक है। और आपके बॉडी में अगर किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स के, मिनरल्स की शॉर्टेज होती है दोस्तों, तो लिवर इसको पूरी करता है। आपके बॉडी में प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स का जो प्रोडक्शन होता है, बॉडी को जो नेसेसिटी होती है उसके लिए भी लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपके खाने से विटामिन ए, डी, ई, के को भी अब्जॉर्ब करने में आपका लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके 500 से ज़्यादा फंक्शन है कि आपको शाम लग जाएगी, रात लग जाएगी सिर्फ और सिर्फ लिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। बट दोस्तों लिवर का भी एक अपना लिमिट होता है दोस्तों। अभी लिवर को मैं कुछ एक ऐसे एग्जांपल से कंपेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने छिपकली देखी होगी, ठीक है। अभी गुजराती में छिपकली को क्या कहते हैं, अगेन वो आप चैट में डाल सकते हैं, मुझे पता नहीं है। तो छिपकली को आपने देखा होगा कि जब उसकी पूंछ कट जाती है या उसका हाथ कट जाता है दोस्तों, तो वो फिर से ग्रो करने लग जाता है, उसकी पूंछ दोबारा से आ जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। उस केस में क्योंकि उसको रीजनरेशन, उसकी सेल्स रीजनरेशन को उसका वरदान होता है, भगवान से उसको मिला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वैसे ही हमारा लिवर भी होता है जिसको रीजनरेशन का वरदान मिला होता है फ्रेंड्स, ठीक है।
अगर ये 50% डैमेज भी होता है तो आगे चल के धीरे धीरे ये फुल्ली फंक्शनल हो जाता है, अपने आप को तब्दील कर लेता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या रहता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि लीवर की भी एक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे बीच में बहुत सारे पुरुष हमारे भाई मौजूद हैं। ठीक है, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि लीवर का 1 घंटे में अल्कोहल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है 15 ml ओनली। 1 घंटे में 15 ml अल्कोहल लीवर इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। बट जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप उनसे पूछिए कि जो पहला पैक जो होता है, जो पहली ड्रिंक बनाते हैं, वो कितने ml का बनाते हैं। मुझे तो लगता नहीं कोई 40 के नीचे बोलेगा, सब 40, 60 या कुछ महान होंगे जो मतलब डायरेक्ट 90 ml को ही मेजर करके अपना ड्रिंक बनाते हैं। ऐसा बहुत देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे लिवर के लिए एक श्राप होता है दोस्तों। वैसे ही इट्स नॉट अबाउट अल्कोहल, ये स्मोकिंग हो गया या बाहर का जो हम खाना खाते हैं केमिकल वाला, प्रिजर्वेटिव वाला जो हम खाना खाते हैं, वो भी हमारे बॉडी में जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक रहता है। अभी हमारे बीच में जो लोग जो थोड़े से मोटे हैं, ठीक है, डोंट फील ऑफेंसिव, जो थोड़े से मोटे हैं, ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, जूझ रहे हैं, उनको 110% फैटी लीवर का प्रॉब्लम है दोस्तों। और अगर वो आज इस एज में फैटी लीवर का ध्यान नहीं देंगे तो यही आगे चल के फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, यही आगे चल के सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, जिसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल हो जाता है दोस्तों आज के टाइम पे। करेक्ट, तो इसीलिए हमको न्यूट्री लीवर का सहारा लेना चाहिए, अपने लिवर की हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, या जो लोग इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं उनको ये न्यूट्री लीवर को अपनाना चाहिए। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपका लिवर खराब है, आपको भूख लगना कम होता है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इचिंग्स, आपकी स्किन होने लग जाती है, आपके जो पाँव होते हैं वो उसमें सूजन आ जाती है, फटीग होता है, वेट लॉस, ये सारे आपको सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। तो न्यूट्री लीवर कैसे हेल्पफुल होता है, इसमें मिल्क थिसल होता है जो कि अल्कोहल ड्रग मतलब मेडिसिन। ठीक है, तो इससे जो ये अल्कोहल ड्रग्स जो कि बॉडी में जब आप कंज्यूम करते हैं और ये आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता है, इससे होने वाले जो टॉक्सिन्स डेवलप्ड होते हैं उसको क्लीन करने में हेल्प करता है दोस्तों। तो ये जो अल्कोहलिक्स हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको न्यूट्रीलेवल देना ही देना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो कालमेघ होता है, हेपेटोप्रोटेक्टिव, हेपेटोस्टिमुलेटिव, और ये लिवर सेल्स को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। भूमि आंवला, तो भूमि आंवला तो दोस्तों जो 6 आयुर्वेदिक औषधियां हैं उसमें भूमि आंवला को दर्जा दिया गया है, मतलब परम औषध के तौर पे भूमि आंवला को दर्जा दिया गया है। ये आपके लिवर सेल्स को रिजुविनेट करने में हेल्प करता है दोस्तों। कुटकी, जो कि आपके लिवर एंजाइम्स को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, आपके डाइजेशन को और ब्लड प्यूरिफिकेशन को ये बूस्ट करने में हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ लेसिथिन, जो कि आपके लिवर में होने वाले सिरायोसिस जैसे प्रॉब्लम्स को भी रिवर्स करने में कारगर होता है दोस्तों। और ये हमने अपने नेटसफ में भी देखा है दोस्तों कि सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स में भी न्यूट्री लीवर ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है और उससे रिलीफ मिलने में पेशेंट की हेल्प की दोस्तों। और इसी कड़ी में हमारा प्यारा डाइटरी सप्लीमेंट आ जाता है, दैट इज डिटॉक्स। अब फ्रेंड्स, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, क्योंकि जो भी मैं नहीं कह रहा हूँ हर कोई स्मोक करता है, ठीक है, मैं जस्ट एक मेंशन किया है ये स्मोकिंग, अल्कोहल, और साथ ही साथ जो लोग प्रिजर्वेटिव वाला फूड्स लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, बाहर जाके जो हम खाना खाते हैं दोस्तों, ठीक है, और बाहर जाके जो हम पोल्यूशन अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारे गले में या चेस्ट में कोई ऐसी कैविटी नहीं है कि ये पोल्यूशन या जो ये टॉक्सिन्स होते हैं इसको रिमूव कर दिया जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप लोग, कई लोग जब सर दर्द होता है तो दवाइयाँ लेते हैं, ब्रूफिन हो गया या डिफरेंट डिस्प्रिन हो गया, ये सब दवाइयाँ लेते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत ही जल्दी असर कर जाती है फ्रेंड्स, करेक्ट, और कुछ लोगों को ये बहुत ही देर में असर करती है और कुछ लोगों को असर ही नहीं करती है। ये ऐसा क्यों होता है, ये वैरी करता है टॉक्सिसिटी लेवल के कारण दोस्तों। ठीक है, और इसी टॉक्सिसिटी अगर आपकी बॉडी में जमी रहती है, फिर आप चाहे आयुर्वेद खाओ, चाहे आप एलोपैथी खाओ, और चाहे आप नॉर्मल अपने घर का वो 3 वक्त का खाना खाओ, वो आपकी बॉडी में नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि ये बहुत पतला है,
इतना खाता है फिर भी इसकी बॉडी को नहीं लगता है, या ये इतना मोटा हो गया है बट ये नॉर्मल खाना खाता है फिर भी ये पतला नहीं हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दोस्तों टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ बॉडी। ठीक है, इसी के लिए अगर ये जानने के तरीके हैं कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है कि नहीं है, अगर आपको शुगर क्रेविंग्स होता है और लो या इनकंसिस्टेंट एनर्जी, कभी किसी टाइम पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ गई, कभी किसी टाइम पे एकदम आप लो हो गए, दैट इज इनकंसिस्टेंट एनर्जी। ब्लॉटिंग गैस, पतला होने पर भी आपका पेट अगर फूला रहता है, ब्लॉटिंग होता है, दैट इज टॉक्सिन्स है बॉडी में। चाय और कॉफी की बहुत ज्यादा लत है आपको, दैट इज टॉक्सिन। और फिर मूड स्विंग्स हो गए, ब्रेन फॉग हो गया। ब्रेन फॉग एक काफी खास एक ये सिस्टम रहता है बॉडी का। आपने देखा होगा कभी आप बाहर जा रहे होते हैं, आप गाड़ी का चाबी लिया, रेडी वेडी के बाहर जा रहे हो, तुरंत आप भूल जाते हैं कि गाड़ी का चाबी मैंने कहाँ रखा है, स्कूटर का चाबी मैंने कहाँ रखा है। 2 मिनट पहले आपके हाथ में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, होता होगा आपके पास साथ, डेफिनेटली बहुत लोगों के साथ होता है। आप टीवी देख रहे हैं सोफे पे बैठ के, बट तुरंत 2 मिनट बाद फिर से आप रिमोट ढूंढने लग जाते हैं कि भाई मैंने अपना रिमोट कहाँ पे रख दिया। दैट इज ब्रेन फॉग। ऐसी कंडीशंस हम लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी में लोग ये फेस करते हैं दोस्तों। साथ साथ माइग्रेन्स हो गए, फ्लूइड रिटेंशन के प्रॉब्लम्स हो गए, जो कि टॉक्सिन्स के बदौलत होते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मुंह से दुर्गंध आना, कॉन्स्टिपेशन दोस्तों, वेट गेन, मोटापा आना, एक्ने, पिंपल्स, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, हेडेक, सर दर्द, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं दोस्तों। और उसी कड़ी में डिटॉक्स कैसे हमारा हेल्प करता है? सेना होता है जो कि आपके गट मूवमेंट्स, आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है, लिवर के एंजाइम्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। अर्व गर्द जो होता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। अम्लखी होता है, ये आपके बॉडी को नरिश करता है, बाइल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, एक इम्यूनिटी को बिल्ड अप करने में हेल्पफुल रहता है दोस्तों। और यष्टिमुदा ये क्या करता है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करता है, म्यूकोसल लाइनिंग को ये मेंटेन करता है। आपके पेट में म्यूकस की एक लाइन होती है कि जब एसिड आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाता है, ताकि वो आपके स्टमक की लाइनिंग को खराब ना करे, उसको डैमेज ना करे दोस्तों। ओके, सो दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल लाइनिंग। तो ये कई केसेस में आईबीएस, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम जिनको हो जाते हैं, या एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, उस केस में ये यष्टिमधु बहुत ही ज्यादा कारगर है। ये इजी डिटॉक्स बहुत ही ज्यादा कारगर रहता है दोस्तों। फिर इस कड़ी में आता है मेन वेलनेस। अब मेन वेलनेस हमारा डाइटरी सप्लीमेंट में सबसे कंफ्यूज्ड डाइटरी सप्लीमेंट साबित हुआ है, और इसे मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैंने देखा है मेजॉरिटी लोगों को, लोग इसे वाइग्रा के तौर पे इसे प्रमोट करते हैं, इसको सेल करते हैं, और सिर्फ सेक्सुअल प्रोनस के लिए, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज को ठीक करने के लिए या इंड्यूस करने के लिए या डेवलप करने के लिए इसको प्रमोट करते हैं, जो कि सरासर गलत होता है दोस्तों। ये भी जो रीजन देते हैं प्रमोशन के लिए वो 110% करेक्ट है, बट एक्चुअल में मेन वेलनेस का काम क्या रहता है दोस्तों, कि जैसे मैंने आपको बताया था, वुमेन्स को भी हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम रहता है, और इसे बैलेंस करने के लिए उन्हें बचपन से ही अच्छा खाना, अच्छा आहार जरूरी होता है। तो 99% मेंस के केसेस में भी हार्मोनल्स का इम्बैलेंस होता है, बट ये इसलिए ये ज्यादा लेवल पे नहीं होता है क्योंकि मेंस के केसेस में मेंस को थोड़ा ये वरदान है कि ये एज के साथ साथ डिक्लाइन होने लगता है। मतलब छोटी एज में अच्छा हार्मोन रहता है, 25, 30, 35 की उम्र में, 40 की उम्र में अच्छा हार्मोन रहता है, फिर 45, 50, 55, 60, 75, 80 की उम्र में करते करते धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। बट बहुत से केसेस में एक्सेप्शंस भी हमको देखने को मिलते हैं कि बचपन से ही मेंस में, बच्चों में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने लगता है। आपने देखा होगा स्कूल के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे इतने मोटे हो जाते हैं, ठीक है, या छोटी उम्र में उनको मतलब फेशियल बियर्ड्स, उनको मतलब हेयर्स उनको आने लगते हैं। सो ये सब क्या है फ्रेंड्स चीजें? ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो बड़ी एज में, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 25, 30, 45 की उम्र में करते करते बाल झड़ने लग जाते हैं। ये क्या है? ये दिस इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, जो पुरुष होते हैं जरूरत से ज्यादा ही चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। जरूरत क्या होनी ही नहीं चाहिए, जरूरत चिड़चिड़ेपन की या गुस्सा करने की, वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ जाते हैं। ये क्या है दोस्तों? दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अब आपके पास ये एक अच्छा बहाना है, जो पुरुष ज्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, उनको आप जरूर मेन वेलनेस आप एज अ गिफ्ट जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस कड़ी में आगे और जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हार्मोन्स हैं मेंस में एज के साथ साथ डिक्लाइन होने लग जाते हैं,
ठीक है। तो अगर आपके हार्मोन्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, अल्जाइमर्स का खतरा होगा दोस्तों, मतलब याददाश्त कमजोर रहेगी, डिप्रेशन आपको घेरेगा, हार्ट डिजीजेस, कॉन्फिडेंस कम होगा, फैट ज्यादा बढ़ जाएगा, मसल डेंसिटी कम हो जाएगी, जॉइंट पेन, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। उसी मतलब अपोजिट साइड में अगर हम देखेंगे, अगर हार्मोन्स अच्छा रहेगा तो पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, हार्ट हेल्दी रहेगा, फैट बर्निंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, सेक्सुअल ड्राइव अच्छी रहेगी, यंग फील करेंगे एज के अकॉर्डिंग, मसल डेंसिटी बॉडी में बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों, और एनर्जी लेवल भी हमेशा हाई रहेगा फ्रेंड्स। तो ये फायदे होते हैं कि हमारी बॉडी में अगर हार्मोन्स का बैलेंस बना रहे तो दोस्तों, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है, अल्कोहल, अगेन स्मोकिंग, स्ट्रेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओल्ड एज, एक्सेसिव मेडिसिन और ओबेसिटी या मतलब हार्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। अब मेन वेलनेस से कैसे दूर करता है, एल सिट्रोलिन, जो कि ये एक हाई क्वालिटी का ये एक एलिमेंट रहता है जो कि फटीग और को कम करने में, एंड्योरेंस को बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने में हेल्प करता है दोस्तों, जिनसेंग जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ये बढ़ाता है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल रहता है, इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में हेल्प रहता है, अच्छा रहता है। अश्वगंधा मैंने पहले भी जैसे बताया था, नींद को ये अच्छी नींद प्रमोट करता है, ये स्ट्रेस बस्टर होता है ये, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है दोस्तों, और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, और भी डिफरेंट जो हार्मोन्स होते हैं मेंस में उनको बूस्टअप करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है। कापी कच्चू हो गया जो कि स्पर्म क्वालिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है दोस्तों, जिंको हो गया जो कि एंजाइटी, जो घबराहट होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, उनको दूर करने में हेल्पफुल रहता है दोस्तों। तो डेफिनेटली जो मेन वेलनेस है 30-35 की उम्र से ऊपर के लोगों को डेफिनेटली ये लेना चाहिए, अपनी 100% हेल्दी परफॉर्मेंस को लेके, अपने बॉडी के अच्छे डेवलपमेंट को लेके उन्हें मेंस वेलनेस को अपने डाइट में से इंक्लूड करना चाहिए स्पेशली दोस्तों। अभी हमने जो हमारे एग्जिस्टेंस डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में जाना जो कि इतने टाइम से चले आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको भी पता है कि जो नेटसफ है वो हमारे देश की सीमा को लांघ के अमेरिकन मार्केट्स, मलेशियन मार्केट्स और आने वाले सालों में 35 से 40 देशों में छाने वाला है दोस्तों। तो हमें ये जो मैदान हमें जो बड़ा मिल गया है, और इस मैदान के लिए हमें ये जो जंग लड़नी है डेवलपमेंट की, इसके लिए हमें नए हथियार चाहिए। और हथियार मतलब मैं AK-47 की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे टूल्स की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में जो नए प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं, डी स्ट्रेस, वुमेन वेलनेस, आई केयर, इनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं फ्रेंड्स। तो अभी ये जो आप एक बॉडी देख पा रहे हैं जो कि किसी तरह के बैक्टीरियाज को अपनी तरफ आकर्षित होने से ये मतलब दूर कर रहा है। ऐसा क्या है दोस्तों, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है जिसे हम लोग हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं दोस्तों, ये एक एज अ डिफेंस मैकेनिज्म है दोस्तों, ठीक है, जो कि बाहर से आने वाले एंटीजेंस को ये दूर करता है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी सोसाइटी का, हम किसी भी कंट्री के भी डिफेंस मैकेनिज्म का अगर हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ठीक है, तो हम देखेंगे जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं हम लोग एक्सपोज्ड होते हैं पॉल्यूशन से, बैक्टीरिया से, कई तरह के पैथोजेंस के कारण, ठीक है। और अगर हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है, अगर ये 24 घंटा अच्छे से काम नहीं करेगा दोस्तों, तो हम लोग बीमार हो सकते हैं एज कंपेयर टू जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, उनसे ज्यादा हम लोग बीमारी हो सकते हैं। तो ये जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ये अगर अच्छे से काम नहीं करता है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी सोसाइटी में अगर सिक्योरिटी वीक है दोस्तों, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि अनफॉर्चुनेटेड थिंग्स या चोरी चकारी, लूटपाट या किडनैपिंग या मर्डर जैसे अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपनिंग्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हम लोग अपने सिपाहियों के, आर्मी की हम लोग क्यों इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे वो लोग खड़े रहते हैं सर्दी गर्मी में, हमको जो अनवांटेड घुसपैठ से बचाते हैं, हमको हमारे दुश्मन की एंट्री हमारे देश में ना हो उससे हमको बचाते हैं। तो यही सब चीजें हैं दोस्तों। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका जो सोसाइटी है, आपका जो
देश का जो बॉर्डर का अगर डिफेंस सिस्टम है, अगर वो सही नहीं रहेगा, रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, तो देश हो या समाज हो या सोसाइटी हो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए बॉडी की भी अगर प्रतिरोधक क्षमता, डिफेंस मैकेनिज्म अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, तो हम लोग जितना मर्जी हम हेल्दी होएं, अपने आप का ध्यान रखें, हम लोग बीमारी की तरफ डेफिनेटली हम लोग झुक जाएंगे और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ेंगी। और आज की डेट में ये कोविड-19 का जो समय है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, स्पेशली महाराष्ट्र हो गया, गुजरात में भी हमें केसेस देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आज की डेट में मजबूरी हो गया है कि हमें अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। और इनफैक्ट ये आपके बिजनेस डेवलपमेंट में भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है दोस्तों। अगर आप हर महीने का एक पैकेज आप अगर डिज़ाइन करते हैं, आप जिनको भी ये प्रोडक्ट सेल कर देंगे, हेल्थ केयर का या जो भी आपके कंज्यूमर है, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा इस सब चीज़ों के कारण। क्योंकि इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि कोविड-19 के आने से पहले कोई इसका ध्यान ही नहीं देता था। आप हर एक किसी का भी बीमारी का नाम लो, लोग उसके लिए ध्यान देते थे, उसके लिए दवाइयाँ, ट्रीटमेंट्स, बट इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए मतलब कोई भी किसी तरह का मेजर लेता ही नहीं था दोस्तों। सो आज के दौर पे जब हम लोग मजबूर हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो हमें इम्यून प्लस हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है दोस्तों। जिम रॉन एक अमेरिकी मार्गदर्शक हैं दोस्तों, वो क्या कहते हैं कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। मतलब ये बॉडी ही हमारी एक ऐसी एकमात्र जगह है जहाँ पे हम रहते हैं और जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2 पिक्चर्स, कुछ अडल्ट्स जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, बस है, ट्रेन से आप ट्रैवल करते हैं क्योंकि हमें काम भी करना है, जिसमें हमको बैक्टीरियाज और वायरस का एक्सपोजर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरी तरफ आप बच्चों को देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही खुश हैं, धूल मिट्टी में कीचड़ में खेल रहे हैं। आप अपना बचपन याद कीजिए दोस्तों, जब आप हम लोग छोटे थे और क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, जब जो हमारी बॉल है अगर वो नाली में भी गिर जाती थी तो उसको बॉल को ऐसे उठा के बाउंस करते थे 2-3 बार एंड खेलने लग जाते थे। बट क्या आप आज की डेट में अपने बच्चों को धूल मिट्टी कीचड़ में खेलने देते हैं? नहीं खेलने देते हैं, क्योंकि आप भी अवेयर हैं इस प्रॉब्लम से कि उनके बीमार होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। ओके, इसीलिए इम्यून प्लस जो कि तुलसी और गिलोय के जैसे तत्वों से ग्रस्त है दोस्तों, ये क्या करता है देखिए, तुलसी जिसको तो हमने भगवान का दर्जा दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, हम इसकी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि ये भगवान है इसको, क्योंकि इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतनी है, हमारी बीमारियों को दूर करने में इतनी हेल्पफुल रहती है कि इसको भगवान का दर्जा दिया है। जैसे कि आपके जितने भी आपके ग्लूकोज लेवल से होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं बॉडी में, उससे होने वाले स्ट्रेस लेवल को ये मैनेज करता है दोस्तों। ठीक है, तुलसी की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है और ये एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम करता है। गिलोय आज की डेट में दोस्तों ये फीवर, डेंगू, कोरोना वायरस के भी इन्फेक्शन से आज साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है दोस्तों कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से भी लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए गिलोय बहुत ही अहम एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसको आपको अपने खाने पीने में जगह देनी चाहिए दोस्तों। और इसीलिए इम्यूनिटी बूस्टिंग का नंबर 1 नेचुरल इंग्रेडिएंट है और आपके ये स्ट्रेस और एंजाइटी को भी दूर करने में ये हेल्पफुल रहता है दोस्तों। ठीक है, और इसी तरह से जो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप बाहर के जो ना दिखने वाले जो खतरे हैं, बैक्टीरियल, वायरल जो खतरे हैं, उससे आप अपने आप को बचा पाएंगे दोस्तों। क्योंकि आप खुद देखते हैं कई ऐसे केसेस हैं जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए, ठीक है, बट उनका जीन सिटी वैल्यू मतलब 25 से ऊपर था, 19 से ऊपर था, तो वो ज्यादा खतरनाक नहीं थे और थोड़े से मेजरमेंट के साथ साथ, क्वारंटाइन होने के साथ साथ उन्होंने इस कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम्स को भी अपनी बॉडी से दूर कर दिया एंड वो ठीक हो गए। ठीक है, और कुछ आप तो न्यूज में देख कोविड-19 के कारण कितनी डेथ हो पा रही है, वो क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है दोस्तों। इसीलिए आप लोग जो भी डायबिटीज से ग्रस्त हैं, जो एजेड लोग हैं या जो लोग बाहर बहुत जाते हैं अपने काम को लेके, जैसे हम लोग हैं, हमारा उठना बैठना हमारा काम ही है दोस्तों लोगों के बीच में, हमें
इम्यून प्लस को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए दोस्तों। बच्चों को, वुमेन्स को, पुरुषों को, ये सबको ये लेना चाहिए दोस्तों। और इस कड़ी में जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जो काफ़ी खास प्रोडक्ट है, आई केयर दोस्तों। आप फोटो देखते ही समझ गए होंगे ऐसा आई केयर को लाने का क्या तुक बना था फ्रेंड्स, क्योंकि आज के मॉडर्न मेडिसिन में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है आई से रिलेटेड, चाहे वो एस्टिग्मेटिज्म हो, ग्लूकोमा हो, कैटरैक्ट का प्रॉब्लम हो, कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम हो, या नॉर्मल ब्लरीनेस मतलब धुंधलापन भी हो, तो लोग क्या करते हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें सिर्फ और सिर्फ सर्जरी या ऐसे थेरेपीज या ऐसे स्ट्रॉन्ग दवाइयों को लेकर ही सजेस्ट करता है, ठीक है। बट उससे भी वो ठीक नहीं हो पाते, वो टेम्पररी बेसिस पे वो एक इलाज रहता है। बट हमारा सबसे पुराना इतिहास, हमारा आयुर्वेद है, वो क्या कहता है कि अगर किसी भी एज ग्रुप का वो पर्सन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, या किसी भी जेंडर का हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, अगर उसे सही इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज हो और सही डेडिकेशन के साथ वो उसे फॉलो करता है, तो किसी भी एज ग्रुप में होने के साथ साथ वो किसी भी तरह की आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर हो सकता है, उसकी आइस ठीक हो सकती है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये जो इतनी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं आइस को लेकर, ठीक है, आज हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, फोन्स, लैपटॉप्स, हम लोग टीवी के पास जो हम लोग बैठते हैं, जो वो हार्मफुल ब्लू रेज जो कि हमारे रेटिना को खराब करती है। ये जो चश्मा जो मैंने बनाया है, ये कोई नज़र का चश्मा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू रेज के प्रोटेक्शन के लिए मैंने इसको बनाया है, ये चश्मे को। तो ये जो ब्लू रेज है, ये जो हार्मफुल रेडिएशन है, इससे बचने के लिए, ये जो प्रॉब्लम्स है, इससे बचने के लिए आई केयर सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। जो कि मोरिंगा, इसमें तत्व मौजूद हैं, इसमें ल्यूटिन, ज़ैंथेनिन, जो कि डाइजेशन के बाद विटामिन ए में तब्दील होते हैं, हार्मफुल रेडिएशन से तो बचाता ही है, साथ साथ एक हेल्दी विजन को कायम करने में हेल्प करता है। और जो आईज में जो स्ट्रेस पड़ता है, जो थकावट होती है दोस्तों, उससे भी आपको ये बचाने में हेल्प करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कहूँ तो ये हर एक बीमारी का जड़ है दोस्तों। हर एक बीमारी इससे स्टार्ट होती है, और आज की डेट का ये कैंसर है दोस्तों, जो कि हर एक पर्सन को अपनी चपेट में ले रहा है, और ये है स्ट्रेस, डिप्रेशन। अम्यूज चिम्प एक मार्गदर्शक हैं, वो क्या कहते हैं, स्ट्रेस इज द इनएबिलिटी टू डिसाइड व्हाट्स इम्पोर्टेंट। मतलब स्ट्रेस के टाइम पे आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप ये समझ ही नहीं पाते हैं। और कई लोग तो उस स्थिति में ऐसे कड़े कदम उठा लेते हैं कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, सुसाइड तक को अपनाने के लिए वो कन्विंस कर लेते हैं खुद को। जो स्ट्रेस होता है दोस्तों, डिप्रेशन होता है, ये कई तरीके से आपको कंट्रोल करता है और अफेक्ट करता है। जैसे ही आपकी बॉडी में कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स, हेडेक, फटीग, फ्रीक्वेंट इलनेस को कायम करता है, ये आपके इमोशंस में तब्दीली लाता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आपका चला जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है। माइंड आपका कैसे चेंज होता है, इसमें फोकस हट जाता है, बुरे सपने आते हैं, नेगेटिविटी रहती है, चिंता आपको सताती है, बिहेवियर आपका चेंज हो जाता है दोस्तों, आपको भूख लगना कम हो जाता है, ठीक है, सेक्सुअल प्रोनेस कम हो जाती है, नींद नहीं आती है, और आप किसी ना किसी स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स में मतलब अपनी खुशी ढूंढने लग जाते हैं। तो और जो स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत ही कई तरीके से हो सकता है दोस्तों। मतलब रिलेशंस में, आपके बिजनेस में, और बाहर के पोल्यूशन से, चाय कॉफी के ज्यादा सेवन से, मेडिसिन से, बहुत सारे रीजंस के साथ में आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसीलिए जो डी स्ट्रेस है दोस्तों, ये अपने आप में ब्राह्मी, जितमानसी, मेलाटोनिन के गुणों को लेकर आया है। ये क्या करता है दोस्तों, ये आपकी बॉडी क्लॉक को मेंटेन करने में हेल्प करता है फ्रेंड्स, ठीक है। बॉडी क्लॉक मेंटेन होती है तो आपको कब टाइम से खाना है, कब टाइम से सोना है, ये आपकी बॉडी इसको अडॉप्ट कर लेती है। ये आपके बॉडी के जो स्ट्रेस लेवल है उसको मैंने दोस्तों, और उससे होने वाला जो खतरा है, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, उसको ये रिलीव करने में हेल्प करता है। और ये आपके जो अनकंट्रोल होते हैं, थॉट्स होते हैं, उसको ये हेल्प करने में हेल्प करता है, ये रिलीव करने में हेल्प करता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये फोन है हमारे बीच में, अगर इसमें बैकग्राउंड में इतने सारे अगर एप्स चल रहे होते हैं,
अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। इसलिए अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमको इसके जो बैकग्राउंड में एप्स चल रहे होते हैं उसको हटाना पड़ता है। वैसे ही अगर आपके बॉडी में अननेसेसरी थॉट्स चल रहे हैं, ओवरथिंक आप कर रहे हैं, तो आप इस सेशन में भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। ओके, आपकी क्योंकि माइंड में वो सारी बातें, वो सारी इधर उधर की बातें चल रही होती है, और चाहे काम हो, चाहे छोटे बच्चे क्लास में बैठे हो, चाहे कि किसी भी चीज को लेके, वो अनवांटेड थॉट्स आपके बॉडी में रहते हैं, माइंड में रहते हैं। तो जो डी स्ट्रेस होता है उन थॉट्स को रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। करेक्ट? ऐसे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स करता है, आपका जो बॉडी होता है इसी कारण जब स्ट्रेस नहीं रहता है तो इजीली एक्सेसिबल होता है, अच्छे परफॉर्मेंस को लेके, अच्छी लाइफ को लेके वो खुद ब खुद मोटिवेटेड रहता है। और नेक्स्ट जो हमारा जो प्रोडक्ट जिस रेंज की हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। डेफिनेटली यस, दैट इज हमारी स्पेशल वुमेन्स, जो कि हमारे समाज को, हमारे घर को, हमारे देश को एक नया आयाम, एक नए डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है। और स्पेशली मैं आज हमारे बीच में जो बैठी अस्मिताएं हैं, मैं उनको नमन करता हूं, उनके लिए मैं अपलॉड करता हूं, तालियां बजाता हूं कि वो अपने करियर के साथ साथ अपने घर का भी ध्यान रखती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये अपने आप में है। इट मीन्स हमारे समाज का जो डेवलपमेंट होता है इन्हीं महिलाओं के डेडिकेशन, इन्हीं महिलाओं के जुझारूपन के कारण ये चीज मैनेज हो पाता है फ्रेंड्स। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो दुर्गा माँ और हमारी मॉडर्न एज वुमेन, ये दोनों मल्टीटास्क को लेके मानी जानी जाती हैं। तो अभी इस केस में क्या होता है, जो वुमेन जो कि घर का काम भी है और साथ साथ अपने करियर पे भी ध्यान देती है, तो ना चाहते हुए भी वो मर्दों के तुलना में ज्यादा काम कर रही होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब इतना जो स्ट्रेस बॉडी में है, काम में है, तो इससे क्या रहता है, उन्हें बहुत सारे ऐसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ जाते हैं दोस्तों, जो कि उनके मूड स्विंग्स को मतलब एलॉबरेट करने में हेल्प करता है, जो उनके हेडेक, नाइट स्वेट्स, फूड क्रेविंग, स्किन प्रॉब्लम, इंसोमेनिया मतलब नींद आने में प्रॉब्लम, टायर्डनेस, फटीग, वेट गेन जैसे प्रॉब्लम्स को भी लाने में हेल्पफुल रहता है दोस्तों। अभी ये सब क्यों, जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ साथ जो बीमारियां, थायराइड हो गई और इससे रिलेटेड आपके सर्वाइकल, आपके बोन्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने लग जाते हैं आपको। ठीक है, मंथली जो इश्यूज होने लग जाते हैं, लिकोरिया और आगे चल के मेनोपॉज जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब जो इतने प्रॉब्लम्स है, इसका क्या उपाय कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग अपनी महिलाओं को हम लोग इन सारी प्रॉब्लम से रिलीफ दे सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन वेलनेस दोस्तों। वुमेन वेलनेस में चेस्ट्री, शतावरी, अशोका जैसे तत्व मौजूद होते हैं तो दोस्तों, जैसे कि अगर एक एक हम प्रोडक्ट की भी इंग्रेडिएंट की बात करें, तो चेस्ट्री जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को हटाने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है और मेनोपॉज में आने वाले खतरों को भी हटाने में हेल्पफुल रहता है। शतावरी तो जैसे महिलाओं के लिए ये एक वरदान होता है, उन्हें डेफिनेटली वुमेन वेलनेस को लेना चाहिए। वो उनके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स को डेवलप करने के लिए, कफ के रिलीज करने में, और गॉल स्टोन या किडनी स्टोन्स को रिलीज करने के लिए, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिलीव करने में हेल्पफुल रहता है। और जो कि उनके मंथली टाइम पे जो कि हैवी ब्लीडिंग इश्यूज होते हैं और उससे होने वाले जो और खतरे होते हैं, उससे वुमेन्स को ये रिलीफ देता है, और जो बॉडी में जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसको वुमेन वेलनेस पूरा करता है दोस्तों। तो क्यों ना जो महिलाएं हमारे घर का ध्यान रखती हैं और साथ साथ घर के डेवलपमेंट में पुरुषों का हाथ बटाती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हमको एक ये पहल करनी चाहिए, ये कदम हमें उठाना चाहिए। तो नेचुरल वुमेन के साथ साथ वुमेन वेलनेस एंड डिटॉक्स, ये डेफिनेटली हर एक महिला को आपको गिफ्ट करना चाहिए। और हर जगह जगह जहाँ पे आप अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस आपको फैलानी चाहिए दोस्तों। और अगर मैं कलेक्टिवली हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करूं, तो इसको ये न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, माइक्रोबियल, हैवी मेटल का सर्टिफिकेशन के बारे में बताऊं तो मैं दोस्तों, आपने 2013 में सुना होगा नेस्ले की मैगी बैन हो गई थी। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी, और एक सर्टिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए कारगर नहीं हुई और ऑडिटिंग में पकड़ी गई,
और उसकी मैगी को बैन कर दिया गया दोस्तों। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं रहा इस चीज को लेके। बट नेटसर्फ ने 20 सालों से ऐसे ऑडिटिंग सर्टिफिकेशन का ध्यान रखा है जिसमें वो खुद कहता है कि हम लोग किसी भी तरह का पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव, टॉक्सिन, स्टेरॉइड्स, अफ्लाटॉक्सिन हम लोग अपने प्रोडक्ट्स में यूज नहीं करते हैं। और ये सारे के सारे सर्टिफिकेशन इंडिया की टॉप गवर्निंग ऑडिटिंग बॉडीज के तहत हमको दिए गए हैं। FSSAI, GMP, HACCP, FSSC, हलाल इंडिया से ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये सर्टिफाइड हैं और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ ये मार्केट में सेल करने के लिए और कंज्यूम करने के लिए ये वैलिड है फ्रेंड्स। और इनकी अगर कुछ यूनिकनेस की बात करूं तो आपको कैप्सूल के अंदर तो आपको वरदान तो मिलता ही है इन औषधियों का, साथ ही ये कैप्सूल भी 100% वेजिटेरियन होती है। ये वेजिटेबल कैप्सूल होती है दोस्तों। ये मार्केट में मिलने वाली जो कैप्सूल्स दवाइयों की उसकी तरह नहीं होती है जो कि जेलेटिन के लिए जेलेटिन से बनी होती है, एनिमल फैट से बनी होती है दोस्तों। सो ये फुल्ली वेजिटेरियन होती है। जो भी नामधारी होते हैं और वेजिटेरियन होते हैं, जैन होते हैं, ये सब लोग इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और हम लोग ये मेडिसिन के तरह नहीं, इसको आप हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे इसे आप प्रमोट कीजिए, जो कि क्लिनिकली टेस्टेड भी है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट्स नहीं होता है और हर एक समस्या के रूट कॉज में जाके उसको अरेस्ट करते हैं, उसको ठीक करते हैं और आपको एक लंबी आयु स्वस्थ जीवन के लिए आपको प्रमोट करते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं ये सेशंस को ख़त्म करना चाहूँगा और थैंक यू सो मच। और आई होप कि ये सारे की सारी नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुई होगी और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित होएगी आपके बिजनेस को लेके। और ये तो सिर्फ आज हमारे हेल्थ केयर के सेगमेंट के बारे में मैंने फ्रेंड्स आपको ब्रीफ दिया है। अभी इसको सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और हमारे पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट्स को लेकर भी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मैं योगेश सर और पराग सर के से मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा और मैं इस सेशन को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। सो अगर किसी के भी अगर कुछ डाउट रहते हैं तो वो चैट में डेफिनेटली लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर सकता हूं अगर 5 मिनट का समय है। अदरवाइज हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरा नंबर अपने जो भी सिलेक्टिव टीम के ग्रुप हैं उसमें आप डालिए ताकि मैं आप लोगों की क्वेरीज रोजाना हर रोज उसे दूर कर सकूं। और कुछ प्रॉब्लम रहती है, मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, तो हम लोग बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच गुजरात, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सेशन लिया। यस थैंक यू वेरी मच अदीप सर। काफ़ी अच्छी तरह से आपने मतलब डिटेलिंग इंफॉर्मेशन दी है। और मैं भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे आज पहली बार पता चला कि भगवान ने हमें जो शरीर दिया है वो सच में काफ़ी कीमती है। मतलब आपने जो एक एक बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स के बारे में बताया और जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स काम करता है आज नेचुरामोर, तो वो काफ़ी अच्छी तरह से बताया है। और हमारे सभी प्रोडक्ट्स यूज़फुल है, नीडफुल है, हमें उसको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें भी स्पेशली खास करके आज के इस युग में, मतलब अभी हम बहुत सारी बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते रहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि योग करें निरोग रहे, लेकिन सिर्फ योग से निरोग नहीं रहा जाता है ना। नहीं तो योग से ही रहा जाता तो आज लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे। और आपको भी लोग बताते थे कि आज ये योग कर लो कोरोना भाग जाएगा, ये योग कर लो हो जाएगा। तो योग एक सेकेंडरी है जहाँ पे हमारी हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बॉडी को जो न्यूट्रिशनल की ज़रूरत है वो सच में आज नेटसर्फ ने हमारे इस हेल्थ के रेंज के माध्यम से फुलफिल किया है। तो मैं तो सबको बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी को रखना है खुशखुशाल तो स्वस्थ का रखे ख्याल विथ नेचुरामोर ब्रांड। हमारा नेचुरामोर स्पेशली नेटसर्फ ने इसीलिए ही आपके लिए तैयार किया है और आज आपको उसकी डिटेलिंग जानकारी हमारे अदीप सर से मिली है। तो हमें भी खाना है, घर के हर एक व्यक्ति, हमारे बच्चे हो, अगर हमारे मेल जितने भी सक्षम लोग हैं तो उनकी बीवी को भी दे, अस्मिताएं काम कर रही है तो उनके हस्बैंड को भी हमें जरूर देना है।
हमारे नेबर्स को भी देना है, हमारे रिलेटिव्स को भी देना है, क्योंकि आज सबका ख्याल रखना, सबके स्वास्थ्य का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के युग में। तो सभी लोग नेचरामोर खाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो नहीं कर रहे, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है और बहुत सारे लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो उनकी ही सेहत का भी हम ध्यान रखते हैं, है ना, लंबे समय से बैठे हैं। तो आने वाले समय में एक स्पेशली एक सेशन डिजाइन करेंगे अदीप सर का, जहाँ पे सिर्फ FAQs रखेंगे, जहाँ पे लोग सवाल करेंगे और सर जवाब देंगे। 2 वे सेशन हम डिजाइन करेंगे और बाकी सारे लोगों ने सवाल किए हैं तो मैंने नोट डाउन किए हैं। योगेश सर आपको रोक रहा हूँ, सिर्फ एक मयूर भाई पटेल के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, उतना। बताइए सर, आप सवाल ये है कि लेडीज अगर प्रेग्नेंट हो 9 महीने से, तो कोरोना का जो अपना इम्यून का प्रोडक्ट है और बाकी है वो दे सकते हैं क्या? तो दैट इज सम, आई थिंक कि वो जानना जरूरी है लोगों को, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा विषय है, तो उसका आंसर मिल जाए तो सबके लिए बेहतर रहेगा। अदीप सर। करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो सर ने किया है। सो देखिए, अब इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रेगनेंसी के जो शुरुआती 3 महीने होते हैं वो हमारे नेचुरमोर के लिए काफ़ी सही रहता है, सूटेबल, ठीक है। बट अभी क्या रहता है, प्रेगनेंसी ना चाहते हुए भी कुछ टेम्पररी बीमारियां लेकर आता है, जिसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो या कुछ थायराइड हो। ये बहुत सारी महिलाओं को ये फेस करना पड़ता है उस टाइम पे। तो उस केसेस में हमें बहुत सारे परहेज की ज़रूरत होती है। अभी क्या है, वो जो महिला है तो उसको उनका जो फिजिशियन है, वो जो डॉक्टर है, वही उनको गाइड कर सकता है, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, तो शुरुआती 3 महीने 4 महीने तक तो हमारा नेचुरल सूटेबल है। बट उसके बाद जो भी उनकी कंडीशन है, अगर उनको कोई गेस्टेशनल प्रॉब्लम्स टेम्पोररी उनको इश्यूज आए हैं, बीमारियां उनको लगी हैं इस डायबिटीज़ को चलते, तो ये हमें उनके डॉक्टर पे ही छोड़ना पड़ता है। तो आपको डॉक्टर रिकमेंडेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस केसेस में। आप किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट उनको नहीं दे सकते हैं उनके 3-4 महीने के बाद, किसी भी प्रेग्नेंट महिला को। सो इसलिए आप भी ये अवॉइड करें। हाँ, जब डॉक्टर रिकमेंड अगर कर रहा है कि उस केसेस में, अभी देखिए अगर उन्हें कुछ डायबिटीज़ हो गया है या मतलब कुछ थायराइड का इशू आ गया जो कि टेम्पररी होता है, तो अगर डॉक्टर जो होता है वो सप्लीमेंट्स उनको दे रहे हैं या जो भी परहेज के लिए दे रहा है, और उस केसेस में हमारा ये जो डाइटरी सप्लीमेंट वो कारगर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक होता है, हर्ब्स होता है ये, ठीक है। तो जो माइट भी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है, 4-5 महीने के बाद। तो उस केसेस में आप डेफिनेटली इसको अवॉइड करें। और डॉक्टर अगर कहता है कि शी इज ओके, शी इज टोटली नॉर्मल और डाइटरी सप्लीमेंट या कोई नेचुरल जा सकता है, तो आप उस केस में उनको दीजिए। अदरवाइज आप मेरे से अगर पूछते हैं तो 3-4 महीने के बाद किसी भी तरह का प्रोडक्ट प्रेग्नेंट महिला को रेकमेंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू। उसका એની રીઝન એમ છે, હું ગુજરાતીમાં થોડું કહું સર કીધું, રીઝન એવું છે કારણ કે ડોક્ટર્સ ઓલરેડી એમને બહારથી વિટામિન્સ, ફોલિક એસિડ ને આવું આપતા હોય છે, અને ઘણીવાર ડોક્ટર્સ આપણું પ્રોડક્ટ એને ઓવર કાઉન્ટર કે કહીને શરીરમાં વધારે પડતી પ્રમાણમાં જાય તોય તકલીફ કરે અને ઓછી પ્રમાણમાં જાય તોય તકલીફ કરે, એટલે આપણા પ્રોડક્ટ્સ એ ટાઈમે રેકમેન્ડ ના કરવા. ડોક્ટરને દેખાડો, ડોક્ટર કે યસ હા આપો તો તમે આ પ્રોડક્ટ્સ આપી શકો છો. કારણ કે ઘણીવાર આપણે શું કરીએ છીએ, ડોક્ટર્સને બીકના માર્યું દેખાડતા નથી, કારણ કે ડોક્ટર્સ ઘણીવાર આપણી પ્રોડક્ટ્સને ના પાડે છે. પણ આવા સિચ્યુએશનને તમારે બહુ સિરિયસલી લેવું પ્રેગ્નન્સીમાં, કારણ કે આ ટોપિક એવો છે, એના માટે તમારે આ દેખાડીને રેકમેન્ડ કરીને જ પ્રોડક્ટ્સને આપવા. इसमें अदीप सर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इम्यून प्लस अभी इस समय हम लोग दे सकते हैं क्या? बाकी लोगों को तो है, बट प्रेग्नेंट वुमन कैन कंज्यूम? हाँ सर, वो शुरुआती दौर में डेफिनेटली वो ले सकती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं, अभी 8th मंथ 9th मंथ चल रहा है तो नहीं सर, नहीं ले सकते हैं। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर उनका डॉक्टर नहीं ले सकते कहता है तो। हाँ, बस यही क्लियर करना है। और मुझे भी नहीं लगता है कि डॉक्टर भी कोई अलग से रिकमेंड करेगा। हाँ, थैंक यू। ठीक है योगेश सर, प्लेजर सर, सेशन एंड कर सकते हैं। यस, थैंक यू अगेन अदीप सर, काफ़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया है। और इससे एक चीज़ ज़रूर होगा कि हमारे गुजरात के जितने भी डायरेक्ट सेलर है वो तो स्वस्थ रहेंगे और उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों का हेल्थ भी अच्छा होने वाला है।
और नेटसर्फ का हमारे हेल्थ केयर रेंज का भी बहुत ही बड़ा सेल आने वाले समय में हमें दिखने वाला है इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सभी को विश यू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सभी लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, काम करते रहिए, और जो भी कुछ आपको दिक्कत आती है तो आपके लीडर्स, आपके वहाँ के रीजनल मैनेजर्स और हमारे यहाँ के जोनल मैनेजर्स सभी आप लोगों के साथ है। तो उसी के साथ अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर गुड हेल्थ। तो यहाँ पे हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।